Good morning, everyone, and I hope you were not able to utilize the break and so रिवीजन वगैरह तो आप लोग नहीं किए होंगे खुद से ना, ये खुद से करने लगे तो फिर बात ही अलग है दोस्त. Anyway, so in the last few classes we have studied about ecology and environment, and in ecology and environment we have seen some basics of the subject, and after seeing some basics of the subject we have also seen that okay, when it comes to interactions of environment with its biotic and abiotic components, it can lead to multiple outcomes, right? And each multiple outcomes is important for our examination, and we have seen it thoroughly. Fine. Now, over a period of time, we have seen about regulators, we have seen about conformers, we have seen about poikilotherms, we have seen about steno and uri, and depending upon temperature and salinity, there can be various aspects. Now, then हमने देखा कि इकोसिस्टम में चार चीजें कॉमन होती हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, ग्रेजिंग इकोसिस्टम हो, ट्री इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, या कोई भी इकोसिस्टम हो. The four things which are common is obviously starts with productivity. Every ecosystem has its some certain capacity to make food, fine, and this capacity of productivity is dependent upon the green plants. Clear hai? Now, the more number of green plants you have, the better productivity you'll be having. After productivity, we have seen that every ecosystem, since there is production, there will be decay also. Correct? So decomposition or decay is a second component, common component of every ecosystem throughout. Now, the second common component of every ecosystem has certain stages. Example: when dead organic matters they die, the detrivores such as earthworm, millipedes, right, termites, they eat on that dead organic matter and they break the dead organic matter into a smaller part known as detritus. Correct? After being fragmentation, the first stage is fragmentation. तो फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है लीचिंग, जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, वाटर सोल्यूबल जो डेड मैटर है वो मिल जाता है पानी में और प्लांट्स को इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाता है. ठीक है. जो डेड ऑर्गेनिक मैटर वाटर सोल्यूबल नहीं है, those dead organic matters they undergo a third stage, we call it catabolism, where microorganisms they further break down that organic matter into humus. Correct? So the fourth stage is humification or the production of humus. Clear hai? After that, then we achieve at the final stage where we call mineralization, where inorganic compounds जैसे nitrogen, phosphorus में वो सब चीजों को तोड़ के होता है. What are the 5 stages? Friendly lions can hunt more, yes or no? So fragmentation, leaching, catabolism, humification and mineralization.
If the detritus is rich in suppose sugar, so the rate of decomposition will be faster. Fine, the rate of decomposition will be faster. टेम्परेचर अगर थोड़ा वार्म है तो डिकम्पोजिशन रेट फास्टर होगा. ठीक है बात. फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने देखा. जब आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन से द्वारा एनर्जी जो लॉस किया गया है खाना को डाइजेस्ट करने में उसको माइनस करते हैं तो वी अराइव एट समथिंग नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. करेक्ट. नाउ what percentage of energy gets transferred from one trophic level to another trophic level? Obviously that law is given by रेमंड लिंडमैन. फाइन. अब 10% आपको लगा पूछेंगे, क्यों पूछेंगे, तो हमको लगता है हमेशा याद ही रहेगा आप. ठीक है. नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ 10%, मतलब व्हाट 10% ऑफ व्हाट गोes to the upper trophic level? Obviously net primary productivity goes, right? Not the gross primary productivity which goes. ठीक है. तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने देखा. फिर हमने देखा एनर्जी पिरामिड एंड हमने एक्चुअली एनर्जी फ्लो को पढ़ते समय दो चीजों हम लोगों को पढ़नी थी while reading energy flow. The first thing that we were supposed to read was energy pyramid. Was about the ecological pyramid, not energy pyramid. Fine. So the concept of ecological pyramid was given by which scientist? Elton. Correct. And that is why ecological pyramid are also known as Eltonian pyramid. Fine. Now there are three types of pyramid which is visible. First is pyramid of numbers, pyramid of biomass, and energy pyramid. One law is universal. That law is energy pyramid will always be upright. Means नीचे से ऊपर ही जाना है energy जो. But pyramid of numbers and pyramid of biomass may show both inverted as well as upright pyramid. Fine. Now tell me which ecosystem shows a spindle-shaped ecological pyramid? Tree ecosystem. Why? Because tree में कौन सा ecosystem है spindle में? Number वाला ecosystem कि mass वाला ecosystem? Which ecological the pyramid is a spindle in tree ecosystem in terms of biomass or in terms of number? Number pyramid, because tree is 1, insects are 1 lakh, but on those 1 lakh insects hardly 10, 20, 30 birds they feed. So it is again narrower, broader, narrower again. Fine. So we call it spindle shape. Am I clear? Tree ecosystem is the only exception. Now, my friend, tell me, what is energy flow in a detritus food chain? Energy flow में हमने क्या देखा है? एनर्जी फ्लो ऑलवेज फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल जाता है ना जी. तो डेट्राइटस के फूड चेन में एनर्जी फ्लो कैसा होता है? टॉप टू डाउन और बॉटम टू अप? डेट्राइटस टॉप टू डाउन और बॉटम टू अप? नीचे से ऊपर. हाँ, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, उस इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. तो बाय डिफॉल्ट एनर्जी पिरामिड हमेशा बॉटम टू टॉप ही रहना. ठीक है. ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं अपने पिछले 3 क्लासेस में. डन. नाउ टेल मी व्हाट इज, मैं पूछता हूं वो बोलेगा. ठीक है. प्लीज टेल मी व्हाट इज अमेंसलिज्म. ओ ना, ओ ऐसे आप ऐसे कर रहा था, हमको लगा कि रिवाइज कर रहा है बोल के. अच्छा रुके, कोई बात नहीं, इधर मत देखिए, हमको देखिए. नहीं आपको नहीं, फर्स्ट रो. व्हाट इज कमेंसलिज्म? थिंक 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 फॉर 5-10 सेकेंड्स. कमेंसलिज्म क्या है? नहीं याद करने की कोशिश तो करना है. अरे हमको भी पता याद नहीं आ रहा है, तभी तो इधर उधर देख रहे थे. कमेंसलिज्म क्या ट्रिक बताए थे? कुछ ट्रिक याद है? Come but don't harm. Right? You come, take benefit, but don't harm me. Plus and zero. Plus zero. What is the example of? Wait. What is the example of commensalism? Yes. Orchid grows on trees, right? Especially mango trees. Orchid growing on mango trees. So orchid is taking benefit. Another example. Yes.
Orchid or mango tree is a popular example, common example. Tell me some another example. Remora and shark. Correct? Remora and shark. Very good. Now, tell me an example of mutual parasitism. ऐसा तो कुछ होगा नहीं ऐसा ना. Tell me an example of parasitism. Parasitic relationship. What happens in parasitism? What is the symbol of parasitic relationship? Symbol समझ रहे हैं? प्लस माइनस में सिंबल में बताइए. एक्सप्लेन parasitism. Never. Plus minus. Then what is competition? What is the symbol of competition? Minus minus, right? Symbol of competition. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. Tell me, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, ठीक है? Tell me, anadromous fishes. What do you mean by anadromous fishes? Comes to ocean for spawning. Very good. Spawning. Example. Very common example was Hilsa. Now, which dam is built on Narmada, which is impacting Hilsa's movement? What is the name of the dam which is built on Narmada, which is impacting the movement of Hilsa? Sankti Valley in Dirang is famous for which migratory bird? Wait. नहीं, वो पराग्वे का जो जर्सी जैसे स्वेटर पहने आपके आगे. हाँ, व्हाइट ब्लैक चेक. सांगती वैली पीछे नहीं पलटेगा कोई भी, क्योंकि पीछे पलट दिए तो फिर क्या फायदा. दिमाग का ऊपर जोर डालिए. सांगती वैली इन दिरांग इज फेमस फॉर विच माइग्रेटरी बर्ड? रिवीजन इज द की हियर माय फ्रेंड. बहुत लोग को नहीं याद आ रहा है, ऐसा नहीं आपका बात है. अभी लोग वुडी शेरलॉक के लिए रेडी था. तो वुडी शेरलॉक थोड़ी पूछ देंगे. This is where revision kicks in. Are you getting my point? Because environment will get over suppose on 20 or 21 and next day 22 को आपका होगा environment का test. Then from 23 Indian polity will start. Are you getting my point? So you're not going to get time to read environment आराम से. ये नहीं कि 5 दिन छुट्टी हो गया तो घर पर बैठ के environment पढ़ लिए पहले. वैसा नहीं होने जा रहा है, ठीक है? जिस दिन environment यहाँ खत्म हुआ क्लास, next day उसका 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक? And उसके day after tomorrow then Indian polity will start. Are you getting my point? So this way if you मतलब साथ ही साथ उसको करते रहना है, ठीक है? Make sure that you do it in general. Now tell me one more thing. You please tell me कि kangaroo rat, okay? Kangaroo rat is found in which place of the world? America or South America? South America. Minus 0.6. Kangaroo rat is found in deserts of North America. Correct? Hot deserts of North America. Very good. कोई बात नहीं, हो जाना चाहिए. Now, which type of changes, which type of response to the abiotic factors is displayed by kangaroo rat? Morphological, physiological, behavioral, सारे तरह का चेंजेस है. जैसे टॉयलेट नहीं करेगा बहुत दिन तक ना, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपने आप में अडेप्ट किया है वो. वेरी गुड. ना, वेरी गुड. जोसेफ, आप बताइए व्हाट इज ग्लॉगर्स रूल? नहीं हो आया ना, झूठ बात नहीं. यूट्यूब पे वीडियोस है. एब्सेंट थे तो क्यों नहीं देखते उसको जाके? अभी शुरू की 4-5 क्लासेस टिल टुडे द वीडियोस आर बोथ नो लाइव एज वेल एज ऑफलाइन, ठीक है? तो ये बहाना नहीं चलेगा, नहीं दोस्त, ये बहाना नहीं चलेगा. ओके. व्हाट इज एलेंस रूल? याद आ रहा है थोड़ा बहुत? नहीं. पिंक. व्हाट इज एलेंस रूल? पिंक टी शर्ट. जोर डालिए, थोड़ा फोल्डर खोलने का कोशिश करिए जोर से. बॉडीज
larger in cold areas. Allen's rule. Tomar, Allen's rule. No idea. No idea. Very good. Very good. Very good. Adidas. हुडी में एलेंस रूल फर्स्ट क्लास है क्या आपका? एलेंस रूल. Yes, external appendages are shorter in colder region, right? What is Bergman's rule? Body size is larger in colder areas, and इन दोनों को मिला के हम लोग वो रूल कहते हैं. बहुत अच्छा. So this is what we have learned over the last 3 years. खराब नहीं लग रहा है ना जिससे पूछ रहे हैं? ऐसे ही पूछ दिया दोस्त ना, मतलब डोंट फील बैड अबाउट इट. ये नहीं कि कल से एब्सेंट मार दिए तो फिर वो फायदा नहीं. हम आपको पहले दिन बोला था कि हम फ्लॉप मारेगा दोस्त. हाँ, इसलिए हम पूछेगा, मेरा आदत है पूछना, ठीक? पूछेंगे तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा सब कोई. डन. तो इसीलिए डोंट टेक इट इन बैड स्पिरिट. अभी आज आपका बेइज्जती हुआ है, कल किसी और का बेइज्जती हुआ. आर गेटिंग इट? सो बी वेरी वेरी, इसलिए बी सबके साथ कंफर्टेबल हो जाना है, ठीक? एनीवे, so now let us resume our today's class where we were seeing ecological pyramids. एंड इकोलॉजिकल पिरामिड में हमने एनर्जी फ्लो को देखा था, इकोसिस्टम के तीसरे कंपोनेंट को. फाइन. सो एनर्जी फ्लो में आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू सी टू मिसलेनियस एंड रिलेटेड टॉपिक्स. ओके. सो द फर्स्ट टॉपिक अंडर एनर्जी फ्लो वाज इकोलॉजिकल पिरामिड एंड द सेकंड टॉपिक वाज इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास विथ इकोलॉजिकल सक्सेशन. फाइन. So please write ecological succession. एब्सेंट तो होना ही नहीं है दोस्त. एब्सेंट हो गए तो गेम आधा खत्म. इकोलॉजिकल सक्सेशन. नाउ इज माय ऑडियो कमिंग देयर? पीछे थोड़ा ऊपर वो है, रूफ नहीं है ना, तो जिस वजह से बारिश की आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है. नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन. प्लीज राइट दैट it is the gradual, write about ecological succession first. It is the gradual comma predictable, gradual माने slow, gradual comma predictable and sequential change. Sequential, gradual, predictable and sequence, chronological, right? Gradual, predictable and sequential change in the species composition, in the species composition of a given area over time, until a stable self-sustaining community, until a stable self-sustaining community is not established, not हटा दीजिए, cut not, is established. उसमें लिखिए, सुनिए ध्यान से मेरे बात. तो है क्या ये इकोलॉजिकल सक्सेशन? इट इज अ नॉर्मल नेचुरल चेंज इन एनवायरनमेंट where one ecosystem is replaced by another ecosystem. Fine. One ecosystem is replaced by another ecosystem. Generally ये दो तरीके का होता है और इसका काइंड्स बहुत टाइप है. फॉर एग्जांपल, अगर जमीन पे टेरेस्ट्रियल हो रहा है तो इसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल सक्सेशन. अगर ड्राई लैंड एरिया में हो रहा है, फाइन, तो इसका एक अलग नाम है. अगर पानी वाले एरिया में हो रहा है तो इसका एक अलग नाम है. सपोज इफ देयर इज lava has spread all over the place,
So when lava has spread all over the place, all the existing life form is deleted, and now a new ecosystem will take place. So in that new ecosystem, there will be someone who will come for the first time. There will be some species which will come for the first time. Maybe lichens will come, lichens या lichens, whatever you can call it. अगर ये डेजर्ट एरिया में हो रहा है, तो फिर डेजर्ट एरिया में भी सक्सेशन देखने को मिलेगा. जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड यू अंडरस्टैंड, पोखरा है आपके गांव में, तो कई बार व्हाट विल हैपन कि आफ्टर सम टाइम, मीन सपोज आपके बचपन में देयर वाज अ लेक, देयर वाज अ पॉन्ड इन योर विलेज, एंड वंस यू विजिट दैट पॉन्ड आफ्टर 25-30 years, you see that now पॉन्ड की जगह पे क्या, पानी कम होते होते सूखते सूखते पेड़ पौधा आ गया. हैव यू ऑब्जर्व दिस और नॉट? It means that lake ecosystem, that aquatic ecosystem has been transformed. Correct? Now the question is, why it is transformed? This is the question. It is transformed just to be present as an example of ecological succession. It means ecological succession is a gradual sequential process which replaces one ecosystem with another ecosystem. It is a natural process, my friend. Fine. अब पानी वाले एरिया में सक्सेशन होगा तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा, हाइड्रार्क, जेरिक, अलग अलग नाम है. जमीन के ऊपर सक्सेशन हो रहा है तो टेरेस्ट्रियल सक्सेशन उसको बोलेंगे. तो इट इज विजिबल इन एवरी टाइप ऑफ इकोसिस्टम एक्चुअली. फाइन. तो हम लोग को क्या जानना है इसमें जानना है स्टेप्स, और इसमें क्या जानना है, कुछ कुछ स्पीशीज के बारे में जानना है कि कौन लोग हैं जो इस सक्सेशन को कैरी करता है, मतलब हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज इन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज बदलाव इज अ रूल ऑफ नेचर, चेंज इज अ रूल ऑफ नेचर, यही तो हम लोग पढ़ते आए हैं ना. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज नथिंग बट हु इज गोइंग टू सक्सीड द प्रेजेंट इकोसिस्टम एंड देयर स्पीशीज विद अनदर इकोसिस्टम. इज इट क्लियर? तो लिख दीजिए, इज ऑफ टू टाइप्स, राइट? इट इज ऑफ टू टाइप्स. It is of two types, primary and secondary. Primary and secondary. Also, if this succession, ES कर दीजिए खाली, if this ES, ecological succession, if this ES takes place, if this ES takes place on land, ब्रैकेट में ड्राई हैबिटेट्स, ड्राई DRY, ड्राई हैबिटेट्स, कॉमा बेयर रॉक्स, बेयर BARE, बेयर रॉक्स, कॉमा कूल्ड वोल्केनिक लावा, then the ultimate goal is to move from xeric, 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 is to move from xeric ecosystem, is to move from xeric conditions, xeric conditions to medium moisture conditions, to medium moisture conditions. Now two terms are introduced to you. What are these two terms? Xeric and mesic. Are you getting my point? UPSC ने क्वेश्चन पूछा, the term xeric refers to. So xeric is a scientific term, correct, which refers to dry conditions. ठीक है? What is dry? Desert. What is dry? Sand dunes. What is dry? Cooled volcanic lava. Understand? हॉट तो सब बर्बाद कर दिया, फिर थोड़े टाइम बाद ठंडा होगा तो लाइफ उसमें आना शुरू होगा ना जी. तो ऑब्जेक्टिव क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन का? द ऑब्जेक्टिव इज टू मूव दिस इकोसिस्टम विच इज ऑलरेडी ड्राई टू अ लिटिल बिट मॉइस्चर वाला इकोसिस्टम. मॉइस्चर अंडरस्टैंड? पानी वाला इकोसिस्टम में जाना है, सो दैट लाइफ कैन थ्राइव.
सो आइदर इट कैन बी जेरिक टू मेसिक और मेसिक टू जेरिक। जैसे गांव का पॉन्ड है आपका, सुनिए ध्यान से, गांव का पॉन्ड, उस पे प्लांट ट्रीज लोग आ गए 25-30 ईयर्स में, ये सुनो 20 ईयर्स में आ जाता है इनफैक्ट, प्लांट ट्रीज आ गया, पॉन्ड खत्म हो गया, यानी पॉन्ड वाज अ मेसिक कंडीशन, राइट। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जस्ट बिकॉज ऑफ कचरा फेंकते फेंकते जो पॉन्ड का जो फ्लोर था, फ्लोर समझते हैं, फ्लोर, राइट, द वाटर फ्लोर, पॉन्ड का जो फ्लोर है वो भरते भरते, मिट्टी भरते भरते, जानवर फेंकते फेंकते उसमें मिट्टी हो गया। इट मीन्स फ्रॉम मेसिक टू जेरिक ऑल्सो, दोनों तरफ से होगा ना जी। फिर सेकंड लिखिए, सेकंड, सेकंड, if in a if in a newly formed if in a newly formed if in a newly formed pond if in a newly formed pond or lake, the ecological succession takes place from hydric hydric ब्रैकेट में एक्सेस वाटर, हाइड्रिक HYDRIC, हाइड्रिक ब्रैकेट में एक्सेस वाटर और वाटर अबंडेंट टू mesic conditions, we call it hydrarch succession, we call it hydrarch succession. And ऊपर वाले को we call it terrestrial और xeric succession. Fine, we call it xeric, terrestrial और xeric succession. दो तरह के सक्सेशन हैं जनरली जिनको जानना जरूरी है। xeric, XERICH, xeric सक्सेशन होगा। अब बस दो टर्म को दोस्त याद रखिएगा, xeric, मेसिक, हाइड्रार्क। इज इट क्लियर? तीन स्टेजेस हो गए, xeric, मेसिक एंड हाइड्रार्क, यानी X से M एंड हाइड्रार्क से भी M. Is it clear? So if you go from xeric to mesic, we call it terrestrial succession or xeric succession. And if the succession is from hydrarch to mesic area, matlab this is water abundant, this is dry, this is medium. Fine? Yani high water, zero water, okay water. ठीक है? So this is what the objective of ecological succession is. So this is the first term जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो क्या पूछेगा? They will just ask you to arrange the stages. What all stages are there in this? From here to here, if we go, what are the stages? Arrange the stages in sequential manner. Why sequential? Because ecological succession is a sequential activity. So they will ask you about the sequence, correct? Chronology. And then here they will ask you again the same chronology that they will be asking. समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब देखिए, इसमें इसको समझने के लिए इसमें कुछ है नहीं, अभी तक हमने आपको कुछ पढ़ाया नहीं, ये बस आपको बताया है मैंने किस तरीके से इट मूव्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर द स्टेजेस हियर एंड व्हाट आर द स्टेजेस हियर, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। लिखिए इन एग्जाम स्टेजेस ऑफ सक्सेशन विल बी आस्क्ड इन एग्जाम, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन इन एग्जाम, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन विल बी आस्क्ड। And remember that as per environmental law, any kind of succession will move towards
mesic conditions. We'll move towards mesic conditions. And for any succession, the entire process at each stage, the entire process of each stage, the entire process of each stage is known as is known as serre, sear, whatever you call it, sear or seral stages. सीयर, सीयर, SERE, सीयर और सेरल स्टेजेस. ठीक, मतलब हर स्टेज, जैसे एक स्टेज से जैसे अचानक से तो नहीं चला जाएगा ना भाई, जेरिक से मेसिक, जेरिक से मेसिक जाने के लिए कुछ स्टेजेस होगा. तो जैसे ही आप स्टेज 1 से स्टेज 2 जाते हैं तो हम बोलते हैं कि सीयर चेंज हुआ है, मतलब सेरल चेंज हुआ है. फिर स्टेज 2 से स्टेज 3 सीयर चेंज, मतलब सीयर इज जस्ट अ टेक्निकल टर्म माय फ्रेंड. ओके, जस्ट कीप दिस इन माइंड, दैट्स इट. लिखिए अदर टर्म्स टू रिमेंबर फ्रॉम सक्सेशन. गिव द हेडिंग terms to remember from succession. Terms that you have to remember from succession. First is sear or seral stage. Second, pioneer stage or species, pioneer species. Second is pioneer species. Pioneer species, इसमें लिखिए अंडर pioneer species लिखिए कि it is the pioneer species, it is the very first species, it is the very first species to colonize, it is the very first species to colonize a barren area, to colonize a barren area, to colonize a barren area, to colonize a barren area. Now tell me, is this will be a plant or this will be an animal? जैसे मान लीजिए ड्राई कंडीशन है दोस्त, हाँ कुछ नहीं है वहां पे, लाइफ ही नहीं, ड्राई है बिल्कुल, कोल्ड वोल्केनिक लावा था. तो सबसे पहला जो स्पीशीज आएगा वहां पे, सबसे पहला, उसको पायनियर स्पीशीज बोलेंगे. और इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय पायनियर स्पीशीज. एपीसीएस ने 3 बार क्वेश्चन पूछा है, मतलब 3 क्वेश्चन इस तरह के पूछे हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज इन द इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल, जैसे टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है क्योंकि टॉप ऑफ द ट्रॉपिक लेवल है. A tiger is required in order to regulate the jungle. जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क, which state, which country? यूएस. तो येलोस्टोन नेशनल पार्क में हमने क्या देखा कि डियर लोग का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया. काहे? क्योंकि जैकल्स आर नॉट देयर. सो जैकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज और नॉट. सो टाइगर्स इन इंडिया, ये टाइगर्स इन द फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं की स्टोन स्पीसी है, मैंने इसके बिना उपाय दोमा. करेक्ट, टाइगर की स्टोन. उसके बाद दूसरा आप देखिए, जितना भी टॉप लेवल कार्निवोर्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज. जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी, व्हेन आई से बीजेपी, करेक्ट, तो हुज फिगर कम्स टू योर माइंड? मोदी जी. तो मोदी जी इज अ फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ बीजेपी. समझ, झंडा है जो बीजेपी के झंडा में इसका फोटो है मान लीजिए. जैसे काजीरंगा, इफ आई से, फाइन, काजीरंगा तो सुने होंगे, तो व्हाट कम्स टू योर माइंड? तो राइनो इज अ फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ काजीरंगा. यानी एनी फ्लैग और सिंबल ऑफ काजीरंगा विल नॉट बी विदाउट राइनो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मींस दैट एनिमल व्हिच इज द आइडेंटिफिकेशन एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. इफ आई से नामदफा, व्हाट कम्स टू योर माइंड? आपके दिमाग में टाइगर आ रहा है, आपके दिमाग में स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल बहुत फेमस है. तो गांव लोग के दिमाग में नहीं आया, फ्लाइंग स्क्वायरल सुना ही नहीं होगा. लोग टाइगर सुना है, ठीक है, बात सही है, गुड है. टाइगर इज ऑब्वियसली देयर, एंड व्हेनेवर टाइगर इज प्रेजेंट,
बाय डिफॉल्ट टाइगर विल बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीशीज, काहे कि उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, फंक्शन बहुत ज्यादा है, करेक्ट। बट नामदफा इज एक्चुअली फेमस फॉर फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक। बट इन जनरल टाइगर्स आर flagship species of any ecosystem provided they are present there. Are you getting my point? For example, if I say, I don't know, if I say कि हो जाएगा, अभी बाद में पाएंगे स्पीशीज में, ये टाइप्स ऑफ स्पीशीज है। इफ आई से पायनियर, इट मींस फाउंडेशनल स्पीसी विदाउट विच दैट इकोसिस्टम का लाइफ वुड नॉट हैव बीन इमेजिन। सो पायनियर स्पीशीज आर जनरली हार्डी प्लांट्स विच ग्रो वेरी रैपिडली, बिकॉज नहीं रैपिडली ग्रो कीजिएगा तो इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, फाइन। सो व्हाट आर सम फीचर्स ऑफ पायनियर स्पीशीज? दे आर द फाउंडेशनल स्पीशीज विच आर most important contributor towards to cause shear, to cause seral stages. Are you getting a point? You're not getting a point. In a dry condition, the pioneer species के ऊपर dependent होगा कि second stage, third stage, fourth stage कितनी जल्दी आ रहा है। इसीलिए pioneer species are the most important species of an ecosystem because they have established the foundation of that part, ठीक, उसको बोलते हैं pioneer, foundational जो expert है। और third point लिखे, climax species। क्लाइमैक्स स्पीशीज, क्लाइमैक्स स्पीशीज में लिखिए कि इट इज द फाइनल स्टेबल, क्लाइमैक्स में इट इज द फाइनल स्टेबल resilient community slash species which remains unchanged unless a major disturbance occurs, which remains unchanged unless a major disturbance occurs, until a major disturbance occurs, ठीक है। ये तीन टर्म है जो इकोलॉजिकल सक्सेशन से ध्यान रखना है। यहां से 100% भाई साहब, ये यहां से एक क्वेश्चन आया है, आता है, ये क्या होता है इससे क्वेश्चन आता है, और ये क्या होता है इससे क्वेश्चन आता है, बस इतना ही पूछता है वो लोग आपसे एग्जाम में, बहुत सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जस्ट हैव टू नो इट ऑन अ सुपरफिशियल लेवल। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? नो नीड टू गो डाउन डीप करने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब यही है कि ईटानगर आज के डेट में जो ईटानगर है वो क्यों है ऐसा ईटानगर? इट मींस देयर मस्ट बी सम पर्सन हु हैज कम फर्स्ट, वो आए होंगे, अपना यार लोग को बुलाए होंगे, जैसे तैसे मुश्किल में रहे होंगे। तो अभी का जो ईटानगर है, कैन वी कॉल इट अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी? यस, इट इज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी which will remain in sync with most of the time until unless some major disasters will not take place. Now it has been stable. Yes or no? ईटानगर अभी स्टेबल हो गया, काम खत्म, यही है कहानी, ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड। So these are the three terms which you have to keep in mind from ecological succession, and I guess the questions will be over. Now write stages of terrestrial succession. Just write stages of xeric succession or terrestrial succession. Stages of terrestrial or xeric succession. सबसे पहला nudation. Nudation, you understand? Barren area must be there. This is the first stage. Everything must be completely barren. Nothing should be there. Nudation. Second, invasion. Understanding? Invasion. Some pioneer species will invade. Correct? लिखे invasion bracket में, by a colony of pioneer species. 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 Now see carefully. Invasion भी दो स्टेज का होता है। एक invasion by
a pioneer species, एग्जाम्पल लाइकेंस, एंड सेकेंड इसके बाद अपना पूरा कॉलोनी लेके आएगा, मतलब मॉसेस विल कम नाउ, लाइकेंस एंड मॉस, MOSS मींस ग्रुप ऑफ लाइकेंस टुगेदर विल कम एंड दे विल ट्राई टू मल्टीप्लाई देमसेल्व्स। उससे लिखने की जरूरत नहीं, बस बता रहे हैं, सेकंड स्टेज अक्षर से इसमें करा देंगे, इसी में हो जाएगा। मतलब वन लाइकेंस विल कम और लाइकेंस के साथ साथ पूरा लाइकेंस मल्टीप्लाई होगा, आर गेटिंग इट? So they will multiply because if you are not able to multiply, it means you are not able to survive. Pioneer एक आदमी के बस का तो है नहीं ना, so pioneer will come, pioneer stage इसको बोलते हैं, this invasion is known as pioneer stage, but after this pioneer stage there must be aggregation. Aggregation means the entire colony should come of lichens. ठीक, lichens लोग का काम क्या है? They will secrete an acid, this acid will break down the rocks, fine, rocks टूटेगा छोटा छोटा फाइन पार्टिकल्स में, जब रॉक्स टूटेगा तो विंड एक्शन की वजह से व्हाट विल हैपन, सॉइल विल फॉर्म एंड दिस इज हाउ लाइफ विल ग्रो। इज इट क्लियर? नहीं तो आप नहीं देखते हैं घर बनाए, जैसे आपने घर बनाया है और घर बनाया तब तक कोई कोई घर में प्लांट जम जाता है, देखें, अब प्लांट कम्स, किसी किसी घर के पीछे से नहीं प्लांट जम जाता है कोई कोई, जैसे आप जितना भी यू क्रॉस दिस कोई सा भी ब्रिज, रिवर का ब्रिज को क्रॉस कीजिए, जो ब्रिज का पिलर होगा उस पिलर में जाके थोड़ा सा देखिए, प्लांट्स विल बी देयर because constant water availability is there, sunlight is there, तो over a period of time वो प्लांट का जो सरफेस है, प्लांट होने के लिए तो सॉइल होना पड़ेगा जी। अब ब्रह्मपुत्र का बीच में कहां से सॉइल आ जाएगा, पिलर्स का बीच में कैसे प्लांट जम जा रहा है, बिकॉज लाइकेंस आर ब्रेकिंग दैट सीमेंटेड पिलर इनटू फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको कहते हैं पायनियर स्टेज। धीरे धीरे हर जगह पर रैंडम अगर प्लांट आ रहा है तो सबसे पहले लाइकेंस आया है, लाइकेंस अपने आप को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो सेकंड स्टेजेस इसी में, या तो सेकंड लिखिए नहीं तो अलग से थर्ड स्टेज लिखिए, लिखिए कि एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ब्रैकेट में कॉलोनी, द एंटायर कॉलोनी, एग्रीगेशन में लिखिए कि कॉलोनी ऑफ लार्जर लाइकेंस, कॉलोनी ऑफ लार्जर लाइकेंस and mosses, MOSSES, colony of larger lichens and mosses take over the entire area, take over the entire area and reproduce full stop. These mosses, MOSSES, these mosses traps moisture, these mosses traps, TRAPS, these mosses traps moisture and they break down rock into soil, they break down rocks into soil, they break down rock into soils. उसके बाद हाँ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए इसी में, मतलब नॉट द स्टेज, एग्रीगेशन में थोड़ा सा स्टार बना के लिखिए कि एज द सॉइल further breaks down, as the soil further breaks down as the soil further breaks down due to wind activity, other seeds due to wind activity, other seeds of hard grasses, other seeds, SWEDs, hard grasses and weed, WEED, and hard grasses and weed takes over that place, full stop.
ना कम टू द नेक्स्ट स्टेज। अभी क्या है, पहले तो सॉइल नहीं था ना, तो पहले हवा बहती थी, पहले वीड लोग आता था, पर वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकता था क्योंकि सॉइल नहीं है। आर गेटिंग अ पॉइंट? नाउ because of lichens, now the rock is being broken into fine fragments of soil. So now at least soil is there and some moisture is trapped. So बनाया कोई और, लेकिन हवा की वजह से, विंड एक्टिविटी की वजह से, जनरल प्रोसेस की वजह से अदर प्लांट्स जो लोग अर्लियर नहीं सर्वाइव कर पाते थे, नाउ दे आर एबल टू सर्वाइव आल्सो. So it means now not only one group of people are there, different tribes are coming. Fine. Why? Because inhabited life हो चुका है. So if everyone will come, resources are limited. So this will lead to everybody competition. So the fourth stage is competition. जी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो हो रहा है ना शुरुआत. हाँ, सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं. लाइकेंस क्या है? व्हाट आर लाइकेंस? व्हाट आर लाइकेंस? लाइकेंस आएगा तब तो मोसेस आ रहा है ना. ग्रुप ऑफ कॉलोनी ऑफ लाइकेंस आर कमिंग टुगेदर सेकेंड स्टेज में. ठीक, तो उसके बाद आ रहे हैं तो दे आर फर्दर accumulating the soil, they are trapping the moisture, and this is how it goes. Then other weeds are also coming up, other weeds, other plants, other species are also coming up from, due to wind activity in general. Then this is causing competition. कहानी stages में चलिए simple. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो आएगा ना दोस्त सबसे पहले, थोड़ी प्लांट ऐसे उग जाएगा. प्लांट उगाने के लिए सबसे पहले तो एक पाइनियर स्पीसीज चाहिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, जो तोड़ेगा रॉक्स को धीरे धीरे सीक्रेट करते हुए एसिड को, तब जाके रॉक सॉइल बनेगा, तब जाके अदर प्लांट्स विल कम. देन देयर विल बी कंपटीशन. फाइन. एंड देन देयर विल बी अ क्लाइमेट चेंज. तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से whosoever will be the stronger, they will be the left out party here after competition. ठीक, लिखिए नेक्स्ट. पोस्ट कंपटीशन लिखिए. कंपटीशन में थोड़ा सा एक पॉइंट लिखिए कि विद द आउटसाइड स्पीशीज एंड एग्जिस्टिंग स्पीशीज, मतलब नहीं, इन आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर वर्सेस इनसाइडर हो जाएगा यहाँ पे. लिख दीजिए आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर. करेक्ट, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर लफड़ा झंझट. और इसी में श्रब्स, जैसे हर्ब्स श्रब्स होता है, हर्ब्स शब्द याद है, तो सॉइल रिचर होता जाएगा और धीरे धीरे प्लांट्स लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स लोग सर्वाइव करना शुरू कर देंगे. ठीक, कंपटीशन हो. कंपटीशन के बाद लिखिए चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम, changes in the environment or ecosystem, changes in the environment or ecosystem as due to the new species, as due to the new species, as due to the new species, shrubs, shrubs, as due to the new species, shrubs will try to suppress, shrubs will try to suppress the grass, shrubs will try to suppress the grass, फिर लास्ट में नेक्स्ट स्टेज क्लाइमेक्स कम्युनिटी. क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इसमें लिखिए a proper mature forest, a proper mature forest will develop, a proper mature forest will develop, creating a dense canopy, creating a dense canopy, creating a dense canopy, and depending upon the climate, and depending upon the climate, canopy, canopy, dense canopy, canopy understand, canopy सुने हैं,
क्या होता है? ट्री लाइन, राइट, द एंटायर ट्री लाइन ऑफ कैनोपी। जैसे क्या है कि श्रब्स होगा, सन लविंग है, फिर ट्रीज का सैपलिंग्स विल ग्रो, ट्री विल ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ट्रीज विल सराउंड एंटायर थिंग, तो ट्री लाइन का कैनोपी एक बन जाएगा पूरा जंगल। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट आइदर इट विल बी एन ओक फॉरेस्ट और इट विल बी अ टीक फॉरेस्ट। टीक मतलब गर्मी में जो हो, राइट, तो ओक ट्रीज, पाइन ट्रीज, ट्री अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग वो फॉरेस्ट बन जाएगा। सो दिस इज हाउ फॉरेस्ट दे कम आउट। ऐसे ही अमेजोन हुआ होगा, करेक्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट कैसे ग्रोथ हुआ है? सो दिस इज अ टेरेस्ट्रियल सक्सेशन दैट हैज टेकन प्लेस। एनी बैरन एरिया, न्यूडेशन, इन्वेजन, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन एंड क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स इन द सेंस फाइनल स्पीशीज, जो सबसे ज्यादा रेजिलियंट होगी, लॉन्ग टर्म तक वो फॉरेस्ट रहेगा until unless major disaster do not take place. ठीक है? So this is how any ecosystem it grows from dry conditions to the medium basic conditions. ये आपको समझना है, स्टेजेस के हिसाब से समझिए या कैसे भी इसको समझिए. This is going to be asked in the examination. What are the stages? They will ask you lichens stage, mosses stage, shrubs stage, right? Competition and then the climax community. That is the climax species finally at the last. Okay? देखिए, what is this? 1 to 2. This is seer. What is this? Seer. What is this? Seer. What is this? Seer. At every stage, the ecosystem is changing. And this seral stage or seer stage is changes in the stages of the ecosystem or ecological succession. तो इसको seer बोलते हैं. यहाँ पे pioneer species आ गया invasion में. Pioneer species, climax species and seer. Seer is nothing but the seral stages everywhere. This is the steps that is need to be followed. Now write stages of hydrarch succession. Give the heading stages of hydrarch. इसमें भी सेम स्टेज होगा। हाइड्रार्क में सबसे पहले नो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, राइट द फर्स्ट पॉइंट, पायनियर स्टेज, पायनियर, जिसको वी कॉल इट फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, पायनियर स्टेज और फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। ब्रैकेट में जस्ट पुट अ ब्रैकेट एंड राइट one to line only, put a bracket and write phytoplanktons multiply, phytoplanktons multiply, comma die and settle at the bottom, and settle at the bottom, settle at the bottom, forming a organic mud, कीचड़, forming a organic mud, forming a organic mud. Second, submerged, submerged stage, submerged, submerged stage. इसमें लिखिए rooted underwater plants, rooted, submerged stage में rooted underwater plants add more organic matter, add more organic matter to the bottom, to the bottom. Once they decay, once they decay, rooted underwater plants adds more organic matter once they decay due to submergence, once they decay due to submergence.
ठीक है। थर्ड स्टेज submerged free floating stage, submerged free floating stage. Under this submerged free floating stage, under this other leaves flowing, under this other leaves, LEAVES, other leaves such as water, other leaves and small plants कर दीजिए, other leaves and small plants such as water lily, lotus, hyacinth, 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 water lily, hyacinth. They cover the submerged plants from the top. They cover the submerged plants from the top. They cover the submerged plants from the top, thereby reducing oxygen and sunlight supply, thereby reducing oxygen and sunlight supply, to underwater organism. This results in more death. Of of fishes and plants, and underwater plants. More death of fishes and underwater plants. बोलिए, देखे हैं ये चीज? वाटर लिली नहीं देखे हैं? चलिए, वाटर लिली नहीं, लोटस तो जानते होंगे। लोटस कहाँ जमता है? पोखरा में तो होता है ना, पॉन्ड में, राइट। उसके बाद वाटर हाइसिंथ है, वैसे अभी साइंटिफिक नाम तो ऑब्वियसली नहीं जानिएगा ना, गांवलिया नाम तो जानते होंगे। देखते हैं, एक फल आता है सिंघाड़ा, उसको बोलते हैं हिंदी में सिंघाड़ा फल। अंदर व्हाइट होता है, स्किन ऐसा करते हैं, तो उसको लोग कहाँ से निकाल के डालता है? पानी से ही तो निकाल के लाता है। और ये हरा हरा प्लांट नहीं जम जाता है हर जगह पे रैंडम वाटर बॉडीज में, उसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, राइट। दैट कॉल इज हाइसिंथ प्लांट। प्लीज गूगल एवरीवन, प्लीज सर्च द इमेज, वाटर गूगल इमेज में जाइए और हाइसिंथ को सर्च कीजिए, HYACINTH। कौन नहीं लाया है? बगल से देखिए, हाइसिंथ, HYACINTH, देखे? देखा हुआ है ना वो सब चीज, तो नहीं देखे हैं वो सब भी? तो बहुत साफ जगह पर रह रहे हैं तब तो आप। You live in a very clean place if you have not seen even that. Water lily, hyacinth, lotus, just go to the Google images and you will see this. देखा है पहले? कभी देखा है गांव बचपन में ये सब चीज? फोटो नहीं देखा अभी? देखा है? तो कभी देखा था वैसा? नहीं देखा? कहाँ गांव है आपका? अरे कैसे नहीं देखा? नेवर आप देखा है? तो गंदा जगह रह रहे हैं। जहां पे गंदगी है दोस्त, वहीं पे होगा। यही सब चीज है। ये लोग क्या है? ये लोग अनवांटेड प्लांट। Who they are? They are unwanted visitors who has visited this place. Fine. ये क्यों? Submerged free floating stage. ये लोग फ्री फ्लोट करना शुरू हो जाएगा, और क्या करेगा? पूरा सनलाइट को रोक देगा नीचे जाने से। This will cover the entire surface of the lake, so sunlight will not go. If sunlight will not go, नीचे का जो मछली वो लोग मरना शुरू होगा। तो मरते मरते ऑलरेडी हम लोग क्या देख रहे हैं? Suppose this is the water body. What we are seeing here? Phytoplanktons, they are settling here. फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज, जो अंडर
अंडर रूट जो पानी के जो पेड़ लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मड बना रहे हैं कि नहीं, दे आर क्रिएटिंग ऑर्गेनिक मड. नाउ दिस इज द सरफेस ऑफ द पॉन्ड. सो इस पॉन्ड पे देयर इज वाटर हाइसिंथ, इस पॉन्ड पे देयर आर लोटस प्लांट, वाटर लिली. ये लोग क्या कर रहे हैं, सनलाइट को दे आर स्टॉपिंग द सनलाइट फ्रॉम कमिंग इनटू द deep inside the water. As a result, aquatic fishes are also dying. Now this is a natural stage, right? This is a natural process. This is a process of ecological succession where a water abundant area slowly gradually it transforms into a medium moisture area. Correct? How it happens? Pioneer stage, submerged stage and submerged free floating stage. हो गया ये कहानी. उसके बाद कुछ कुछ पेड़ लोग ग्रोथ करेगा तो जिनका रूट है नीचे, बट दे विल ग्रो अप वेरी हाई, पानी के ऊपर कुछ कुछ ज्यादा ग्रो करने लग जाएगा. As a result, they will eat up all the available oxygen and all the moisture there, leaving others competition stage. And all this is what? This is competition stage. और यही थ्योरी हम लोग पढ़े हैं competition का. There are two types of curve. There are two types of graph. S curve and J curve. Remember? S curve, J curve याद है कि नहीं जी? यही पढ़े थे हम लोग. We have read this S curve and J curve because the resources are limited. Competition will be more. So obviously, the population growth model will always be sigmoid. That is S shape. So this is a testimony to that. Like a fourth stage, write the fourth stage. Red swamp stage. Red swamp, SWAMP, red swamp stage. इसमें लिख दीजिए. Plants root in the mud. But they have shoots, SHOOT, but they have shoots above the water. They have shoots above the water. Shoots, SHOOT, shoot above the water. They transpire huge amounts. Of water. Huge amounts of water. Drying out the wetland. Please take out your Google and search polygonum grass. Polygonum, POLYGONUM, polygonum grass. Just Google image देखना है दोस्त, इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है. Just see the Google image. Polygonum grass. देखे? कभी देखे हैं पानी में? नहीं देखे हैं? Please search Sagittaria plant. Sagittaria. स्पेलिंग देख लीजिएगा. Sagittaria, SAGITARIA, Sagittaria plant. Sagittaria, SAGITTARIA, Sagittaria. मिला? हमको तो मिल गया गूगल इमेज. लाल वाला नहीं, बड़ा बड़ा प्लांट होता है जिसके ऊपर पानी डालते हैं तो पानी नहीं जमता था उसके ऊपर. वो अरे नहीं देखें क्या यार, वो पत्ता बड़ा बड़ा जिसके ऊपर पानी ठहरता नहीं है, बूंद बूंद बन जाता है, क्रिस्टल्स ऑफ वाटर. हाँ, यस. अरे समवट लाइक दिस, बड़ा बड़ा सा होता है ना, क्रिस्टल्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर देयर. ये है रेड स्वाम्प स्टेज, इसको बोलते हैं. ये डिग्रेडेशन का क्वालिटी है. अब इसको डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये आदमी लोग का एक्टिविटी की वजह से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है कई बार, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. फाइन, बट दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस माय फ्रेंड, वेयर ह्यूमंस हैव नथिंग टू डू विद दिस. Right? This is ecological succession. How one ecosystem is hijacked by another ecosystem over a period of sequential stages.
करेक्ट डेफिनेशन में लिखे हैं ना जी, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ ग्रेजुअल sequential change. So this is the sequence that will be asked in the examination. Okay, अभी इसको समझने को समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन एग्जाम में बहुत फालतू सा क्वेश्चन आएगा एक, अरेंज द फॉलोइंग, या विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ xeric to mesic condition, this transformation, hydrarch to xeric mesic transaction. Are you getting my point? So जिस स्टेजेस आएगा, बट ये स्टेजेस में आपने ये प्लांट को देखा, और प्लांट कैसे बड़ा हो रहा है, पहले वाटर लिली हाइसिंथ के बाद अब इनका एरिया बड़ा हो गया ना, 1 to 3 मीटर्स का लेंथ होता है इनका. तो रूट्स आर देयर इन द ऑर्गेनिक मड, बट द शूट्स आर प्रोट्रूडेड आउटसाइड द वाटर. दे ट्रैप ऑल द अदर मिनरल्स, सो लिविंग अदर प्लांट्स मिनरललेस. तो ये लोग का ग्रोथ होगा तो बाकी लोग का ग्रोथ दबते जाएगा. इसको आप वाटर पोल्यूशन का भी एग्जांपल बोल सकते हैं, बट दिस इज द नेचुरल प्रोसेस. व्हेन इट विल बी कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, व्हेन इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमंस, एंड व्हेन ह्यूमंस दे कॉज इट, वी कॉल इट यूट्रोफिकेशन. याद रखिएगा इसको, सुनिए ध्यान से. हुश एवरीबॉडी, हुश हुश हुश. This process is a natural process, fine, and in this natural process the lake is getting older, older, and finally the lake will die. Are you getting my point? The water body will die after some time, and the moment it dies we call it climax. अभी तो डेथ शुरू हो रहा है ना. So this process, don't sleep, this process is known as eutrophication. What is eutrophication? Naturally dying of the lake, या नेचुरली ओल्ड एज होते जाता है जब लेक का, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन. और इस यूट्रोफिकेशन को जब ह्यूमंस की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है तो वी कॉल इट कल्चरल यूट्रोफिकेशन और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन. हाउ डू वी ऐड टू इट? वी ऐड टू इट एक्चुअली. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यूट्रोफिकेशन. दिस प्रोसेस, राइट, नेचुरल ओल्डिंग ऑफ, ओल्डिंग तो नहीं बोलेंगे, ओल्डिंग तो कोई वर्ड नहीं होता ना, मतलब द प्रोसेस ऑफ ओल्ड एज ऑफ द लेक एक्चुअली वी कॉल इट नेचुरल ओल्ड एज. नेचुरल इसको पुराना. नाउ प्लीज एक बार सर्च करिए यूट्रोफिकेशन, प्लीज सर्च यूट्रोफिकेशन ऑन योर गूगल, मतलब गूगल पे सर्च करिए यूट्रोफिकेशन, नॉट द इमेज, द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन. प्लीज रीड एनीवन. यूट्रोफिकेशन क्या सर्च किए हैं, पढ़िए तो थोड़ा सा. व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? रीड इट. जो जोर से पढ़ सकता है पढ़िए, पढ़िए तो आप बेटे. हाँ. बस समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं कि यूट्रोफिकेशन इज एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन द वाटर बॉडी, फाइन, एंड ड्यू टू दिस एक्सेसिव न्यूट्रिएंट फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गीज, दे ग्रो, दे कवर द वाटर. जबरदस्त एल्गल जन्म हो रहा है. ये नॉर्मल प्रोसेस था, लेकिन इस नॉर्मल प्रोसेस को ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा क्या कर दिया है. जैसे वेस्ट आप भेज रहे हैं पानी में, इफ योर हाउस वेस्ट इज गोइंग टू वाटर बॉडीज, इट मींस दैट हाउस वेस्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ वेजिटेबल वेस्ट आल्सो. यस और नो? चावल दाल भी है उसमें, ऑर्गेनिक मटर भी आपके हाउस से जा रहा है, पानी में उसमें जा रहा है. तो उसके वजह से क्या है, दैट इज एक्चुअली न्यूट्रिएंट, and that nutrient is further increasing the birth of algae and other organism. Are you getting a point? As a result, the water body is becoming a dead zone where everyone is getting, after decay, everyone is getting settled in the organic mud. Fine? Organic कीचड़ में. और होते होते लाहे 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 वो पूरा का पूरा लॉक जो पॉन्ड है वो गायब हो जाएगा एक टाइम के बाद. तो यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस. फाइन. व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? This is eutrophication, but this eutrophication is accelerated by humans. हम लोग एक्सेलरेट कर देते हैं इस प्रोसेस को. तो इसलिए ये स्टेजेस को हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनते बनते पुराना हो गया है. सो इन ए न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड, दे विल बी आस्किंग अबाउट साइंटिफिक स्टेजेस. ठीक है, बस इतना थोड़ा सा
रिलेट करके दिमाग में रखिए, बाकी एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, हम आपको बस एग्जाम्पल रिलेट करने के लिए बता दिए। सबसे पहले लिली, हाइसिंथ, फिर बनेगा ये पॉलीगम ग्रास एंड सेगिटेरिया। सेगिटेरिया प्लांट के बारे में सुने होंगे, लोग लगाता है भी अपने घर में, बट दिस सेगिटेरिया बिकम्स इंपॉर्टेंट है। रेड स्वाम्प, नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द रेड स्वाम्प के बाद नेक्स्ट स्टेज लिखिए स्क्रब स्टेज। स्क्रब नहीं, स्क्रब के पहले लिखिए मार्च मेडो स्टेज। मार्च मेडो, मार्च मीडो स्टेज, मार्च MARSH, मार्च मेडो स्टेज। मार्च मेडो में लिखिए कि द सॉइल इज नाउ वाटरलॉग्ड, द सॉइल ब्रैकेट में मार्च मेडो में, द सॉइल इज नाउ वाटरलॉग्ड but it has no longer open water source। उसके बाद इवापोरेशन, then turns it into a damp meadow, turns it into a damp meadow, MEADOW, evaporation turns it into a damp meadow। Now please Google everyone the image of meadow, MEADOW। What is a meadow? आप लोग के पूरा अरुणाचल प्रदेश में भर्ती होगा, जो लोग जनरली ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश जाते समय रास्ते में यू विल फाइंड अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, हल्का फुल्का कीचड़ नुमा पानी है, और धीरे धीरे पानी वहां पे सूखते जा रहा है, इवापोरेट होते जा रहा है ना। देखें मेडो, ग्रासेस आर देयर, लॉन्ग ग्रासेस आर देयर, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। मेडोज, MEADOWS। जस्ट गूगल इमेज, जस्ट गो टू द गूगल इमेज एंड meadows will be sufficient। ठीक है, बस फोटो देख लेना है दोस्त, वो मार्च मेडो स्टेज है, वो डैम्पनेस है थोड़ा थोड़ा, और लॉन्ग एग्जाम्पल लिखिए, राइट, एग्जाम्पल्स कैरेक्स, कैरेक्स, जंकस। नाउ प्लीज गूगल द इमेज ऑफ कैरेक्स ग्रास, प्लीज सर्च CAREX, कैरेक्स ग्रास। सेज भी बोलते हैं उसको, मिला कैरेक्स ग्रास तो देखे होंगे। फाइन, दिस ग्रोज आफ्टर द रेड स्वैम्प स्टेज, कैरेक्स ग्रास। फिर प्लीज सर्च जंकस, टॉल, राइट। काजीरंगा, हैव यू बीन टू काजीरंगा? नो? क्या किए आप लोग जीवन में अपने, जब कहीं घूमे नहीं है, पढ़े भी नहीं है, तो व्हाट यू हैव डन? Neither you have studied nor you have visited the place, so actually what you have done, एक होता है ना कि चलो नहीं पढ़ रहे, घूमते हैं खाली, चलिए दोस्तों के साथ घूमे, यहाँ घूमे वहां घूमे, हाइकिंग किए। आप लोग क्या किए हैं? यूट्यूब पे भी नहीं गए हैं कभी काजीरंगा? जैसे हम भी नहीं गए हैं लोग दोस्त, लेकिन बहुत सुंदर जगह है, यूट्यूब से देखे हैं, थोड़ी हम गए हैं। यूट्यूब है दुनिया भर का, तो क्यों जानना जरूरी है? यू गो ऑन यूट्यूब, सो यू विल फाइंड एलिफेंट ग्रास, आपको मिलेगा वहां पे। एलिफेंट ग्रास वी कॉल इट, 8 फीट 7 फीट 10 फीट लंबा ग्रास है। उसमें एलिफेंट सफारी लोग करता है तो एलिफेंट नहीं दिखता है भाई साहब, इतना लंबा लंबा ग्रास होता है। प्लीज सर्च एलिफेंट ग्रास काजीरंगा इमेज। बिना मोबाइल के तो क्लास में बैठना ही नहीं है, इन्वायरमेंट क्लास में बिना मोबाइल। अब देखिए डिजिटल बोर्ड होता तो यहाँ दिखा देते, नहीं क्या, पर दिखा के मजा नहीं है, एग्जाम में तो खुद से लिखना पड़ेगा हाथ से। yes or no? But don't worry, we will have digital board, but again it serves no purpose। लास्ट में आपको हाथ से ही तो बनाना है ना जी, तो यहाँ दिखा के मजा लेके क्या फायदा है? हाथ से बनाइए, खुद से मेहनत कीजिए। सर्च एलिफेंट ग्रास इन काजीरंगा, देखे हैं? दिखा फोटो?
88 फीट 99 फीट का होता है वो एलिफेंट ग्रास. दिस इज हाउ इट ग्रोस. मेडोस, मार्श मेडो स्टेज के बाद उतना लंबा लंबा ग्रासेस निकलता है सामने. ठीक. नेक्स्ट, मार्श मेडो के बाद राइट द नेक्स्ट स्टेज, श्रब स्टेज. श्रब, SHRUB. आफ्टर मार्श मेडो स्टेज के बाद नेक्स्ट इज श्रब स्टेज. Shrub. Under this, just write bracket में, under this the soil becomes dry enough. Under this the soil becomes dry enough to support woody grass, woody shrubs, to support woody shrubs. Example, woody, WOODY, woody shrubs, woody shrubs. Example, willow and alder, ALDR, willow and alder. Just go and search the images. No one will make any note of these examples. It's not required. This subject do not require subject specialization. ये बस आपको reality मतलब ये relate करने के लिए जरूरी है. Shrub stage. And last में climax. Last लिखिए climax stage. Climax forest stage. Climax forest stage. Climax forest stage. ठीक है. Now everyone, let us try to memorize it now and here itself. Let us not take it home. Okay. Now, what is the first? What are the stages of terrestrial succession? Terrestrial succession का मतलब पानी में नहीं, लैंड में सक्सेशन को terrestrial succession बोलते हैं. Everyone, focus here. Area must be barren. Nudation. Someone will come. Invade. Nudation. Invasion. He will come along with his friends. Aggregation, right? Multiplication जिसको बोलते हैं. What is aggregation? Reproduction or multiplication. So nudation, invasion, aggregation. Nudation, invasion, aggregation. Nudation, aggregation, yeah, nudation, invasion, aggregation. NIA, National Investigative Agency. ठीक. Next. After that, competition will be there by default है. Then क्लाइमेक्स, काम खत्म है, ज्यादा कुछ नहीं है. तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीसी बोले तो क्लाइमेक्स तो याद ही है ना, तो याद करने की जरूरत नहीं है ना यार. अरे क्लाइमेक्स विल कम एट द लास्ट, दिस यू नो. इसको मत याद कीजिए. तो बचा कितना? 4 में से 3 हम ही याद करा दिए, एक खुद से याद कर जाइए. राइट. तो निया सी और लास्ट में क्लाइमेक्स है, उसको याद नहीं करना है. वो बाय डिफॉल्ट मार देना टिक. पायनियर सबसे पहले होगा, क्लाइमेक्स सबसे लास्ट में होगा. बात खत्म. और बीच में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? सीयर. व्हाट आर द सीयर स्टेजेस और सेरल स्टेजेस? तो सेरल स्टेजेस तो याद करना है ना जी. नाउ कम टू दिस वाटर पार्ट. वाटर से कैसे फॉरेस्ट पे जाते हैं हम लोग? सबसे पहला पायनियर स्टेज, फाइटोप्लैंक्टन्स. दिस पायनियर स्टेज के बाद क्या होगा और क्लाइमेक्स के पहले ये जितना भी स्टेज है, मतलब फ्रॉम हेयर टू क्लाइमेक्स, दिस इज सीयर चेंजेस, राइट? और सीरल चेंजेस. इज इट क्लियर? ठीक है. सीयर और सीरल चेंजेस. नाउ सबमर्ज स्टेज, फ्री फ्लोटिंग स्टेज. फिर उसके बाद रेड स्वाम्प, मार्स मेडो. याद करने की कोशिश कीजिए, देखिए मत, याद कीजिए, थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर डालिए. डोंट ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन योर माइंड. पायनियर, submerged free floating, then red swamp, मार्स मेडो. मार्स मेडो के बाद सर क्या बताया था ना, जंकस का एग्जांपल था जिसमें श्रब, करेक्ट? श्रब्स, हर श्रब्स के बाद वही क्लाइमेक्स. तो मेरे हिसाब से कि इसको याद करने का कोई मेरे पास ट्रिक नहीं है दोस्त. हाँ, इसमें क्या था? अंडर वाटर रूट, सो रूट, फ्री फ्लोटिंग, रेड स्वाम्प, सबमर्ज रेड स्वाम्प, ठक ये हो जाएगा अभी. ऑल द बेस्ट. एक तो हम याद करा दिए, एक खुद से याद करने की कोशिश कीजिए, घर पे जाके कुछ ऐसा रिलेशनशिप निकालिए एंड ट्राई टू मेमोराइज इट योरसेल्फ. क्लियर? एक बार और देख लीजिए दोस्त लोग, सब कोई जस्ट सी इट वंस सो दैट ये घर जाके नहीं करना पड़े, याद हो जाए. टाइम भले ज्यादा लगा है
बट कंसेप्चुअली साउंड होने के लिए, रिलेटिविटी के लिए दिस इज जस्ट इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स. इफ यू सी अ पॉन्ड, डोंट से अरे तो खराब हो रहा है, ये मत. गांवलिया लोग बोलता है इस तरह की बात. बोलिए कि नाउ इट विल एंटर द रेड स्वैम्प स्टेज, और बोल के हट जाए वहां से. फिर देखिए भौकाल अपना, देखिए फिर कैसे लड़के लोग आपसे आज आने लगेगा शादी करने के लिए, और आप लड़के हैं तो देखिए कैसे लड़का लोग पागल हो जाएगा. ब्रेन विथ ब्यूटी, नहीं इसका क्या है, ब्यूटी विथ ब्रेन, सॉरी, ब्यूटी विथ ब्रेन. समझ रहे हैं बात की नहीं? तो भौकाल बनाना है दोस्त हर चीज. शो ऑफ ज्यादा कीजिए, ये सब शो ऑफ वाला पार्ट. दिस इज जस्ट फॉर एन ऑब्जर्वेशन एज अ स्टूडेंट. Is it clear? If you see water hyacinth, next stage, 100%, there is going to be Sagittaria grass. Maybe within 2-3 months, you will find this stage. After a certain time, if this is not taken care of, marsh meadows will come. And after 5 years, once you again come back, you will see tractor चल रहा है उस जमीन का ऊपर, क्योंकि that has entered into this scrub stage or maybe the forest stage. Climax. समझ में आ रहा है? पानी ट्रैप होते जाएगा. So natural process where the lake gets old, we call it eutrophication. Fine. जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी में उसको पढ़ेंगे आगे. बस ये टर्म याद रखिए. Eutrophication is natural old aging of the lake. This is natural old aging of the lake. Okay. Now come to the fourth component of ecosystem. चौथा component क्या था? Nutrient cycle. Fine. सांस लीजिए और लिखिए nutrient cycle. Come to the fourth component, which is nutrient cycle. बहुत टाइम लग गया दोस्त इसमें, तो ठीक है. Now, take a quick break, everyone. Quickly. जल्दी आइए. हाँ, आधा ही टॉयलेट करके आइए, पूरा मत कीजिए. आइए जल्दी. Quick 2 minutes washroom break. बंद कर देगा? हाँ, सब बंद कर देने से कैसे होगा? चला देगा? बंद है तो.
देख के हंस रहे हैं ना हंस के देख रहे हैं? हाँ, कौन? ठंडा बंद कर दें जी। आप लोगों को देख के हमको गर्म लग रहा है, जैकेट वैकेट देख के ना। बुकलेट लाया है? बुकलेट लाया है? बुकलेट बुकलेट नंबर 5 लाए हैं? क्या किए हैं इसके साथ? इसी पे सोते हैं क्या? आर यू गेटिंग टाइम टू रीड दिस बुकलेट? नहीं, बहुत बिजी है नहीं आप लोग ना, टाइम नहीं। इसको इसको खोले नहीं है कभी? खोले हैं ना? खोले हैं फिर बंद कर दिए ना? गुड, वेरी गुड। बहुत काम का बुकलेट है दोस्त, सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, याद रखिएगा, एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। पढ़ते समय भले थोड़ा लगेगा कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, बट वट एवर इज डन फ्रॉम द क्लास एंड दिस, none of the question will be out from this, none. I mean, even current affairs will be covering it, don't worry. बाल ऐसे नहीं ना पक गया है दोस्त, ये याद रखिएगा, हमेशा डाई नहीं किए हैं, पक गया है। खिड़की के बाहर नहीं खड़े थे धूप में। चलिए गाइस, सिट, सेटल। हेलो, यस, प्लीज राइट न्यूट्रिएंट साइकिल में, राइट द फर्स्ट पॉइंट इन ब्रैकेट, राइट द फर्स्ट पॉइंट इन ब्रैकेट, न्यूट्रिएंट साइकिल फोर्थ कंपोनेंट है, हाँ, दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। आफ्टर दिस इकोसिस्टम टॉपिक इज ओवर एंड देन वी मूव ऑन टू बायोडाइवर्सिटी, फाइन। सो नाउ लिखेगी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, लिखिए ब्रैकेट में, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, however 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 understanding this may be important, however understanding this may be important for GS paper 3, for however understanding this may be important for GS paper 3 in mains, GS paper 3 in mains. Now tell me everyone, what was the syllabus which I told you on the first day? Syllabus of GS paper 3, पीछे नहीं पलटना है, पीछे पलटे तो फिर क्या फायदा? What are the subjects in GS paper 3? Do you remember? GS 3 subjects क्या क्या था GS 3 में? अरे इतना हिंट दिए हैं फिर भी तो याद नहीं आ रहा आप लोग, बोले हैं कि GS 3 में जरूरी होगा, इन्वायरमेंट का टॉपिक है, तो इसलिए इन्वायरमेंट विल बी वन ऑफ द टॉपिक, इकोनॉमी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, डिजास्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशली टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन। सो दिस वाज जीएस पेपर 3, याद रखना है, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 1? जिससे पूछेंगे वो बोलेगा, रुके, फर्स्ट डे बताए थे नहीं आपसे, जीएस 1 का सिलेबस क्या है? ब्रॉड सिलेबस, रफ, सोसाइटी वेरी गुड, हिस्ट्री वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट ओके वेरी गुड, ज्योग्राफी
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड नॉर्थ ईस्ट। तो पहले दिन ये पढ़ाए थे दोस्त, क्लास शुरू होने के पहले। तो ना ही आप लोगों को पहला दिन याद है और ना ही क्लास नंबर 2, 3 और 4 याद है। तो ये याद करिए भाई साहब, क्या करना है, याद करना है। दिस वाज द सिलेबस व्हिच वी डिस्कस, राइट? सो न्यूट्रिएंट साइकिल is going to be important for your mains examination. However, not that much important, but maybe, correct? Maybe, sort of. Now, what is nutrient cycle? What is nutrient cycle? There are nutrients which are important for plants for their survival. Now, how these nutrients are stored and how fast do these nutrients goes to the plant? Then from plants die, these nutrients go down, detritus food chain, detrivores, they break these nutrients, and again these nutrients are available to the plants. Yes or no? So this cycle that goes on and on and on. Now this cycle is fast or this cycle is slow. This can be a topic of prelims examination. Correct? How carbon moves, how nitrogen moves, how oxygen moves, how phosphorus moves, how sulfur moves in an ecosystem, round, 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 round and round. This can be important for your prelims examination. However, questions उतने नहीं पूछे गए हैं अभी तक so far from this biogeochemical cycle. तो न्यूट्रिएंट साइकिल का जो दूसरा नाम है वो है बायो जियो केमिकल साइकिल के नाम से भी इसको जानते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट ये जान जाइए आप, ठीक है? और डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा बस लिखिए, ज्यादा शहीद नहीं होना है, थोड़ा सा लिखिए कि it refers to please write the nutrient cycle. It refers to the movement and circulation. It refers to the movement and circulation, refers to the movement and circulation of nutrients of nutrient through the of nutrients through the biotic and abiotic components, through the biotic and abiotic components of the biosphere, of the entire biosphere, of the entire biosphere. Now see here carefully. हम लोग देखे कि organ system makes an organism. Remember, different organisms they come together, and organisms they make population. Population of certain areas or this place they makes a community. Remember, now community in general it makes an ecosystem. Overall interaction ecosystem हो गया, people का ecosystem. Now ecosystem leads to biomes, जैसे desert biome, aquatic biome, फाइन, अलग अलग बायोम्स बन गया और बहुत सारा बायोम्स मिलके बायोस्फीयर बनाता है. बायोस्फीयर इज लिविंग लाइफ ऑर्गेनिज्म. तो हम लोग को स्लोली ग्रेजुअली यहाँ तक पहुंचना है, ठीक? बायोम्स, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड ऑल वी हैव टू सी केयरफुली. तो एक बायोस्फीयर में मतलब पूरा का पूरा जो हायर लेवल ऑर्गेनिज्म में हाउ द न्यूट्रिएंट्स मूव बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल और बायोजियोकेमिकल साइकिल. फाइन, लिखिए, दे आर ऑफ ब्रॉडली टू टाइप्स. न्यूट्रिएंट साइकिल इज ऑफ टू टाइप्स. gaseous cycle and sedimentary slash deposition cycle. Sedimentary slash deposition cycle. Deposit, sedimentary और deposition cycle. यहां पे लिखिए, it is rapid and highly efficient as
the nutrient loss is minimum. It is highly efficient and rapid, fast है, ठीक है, highly efficient and rapid as the nutrient loss is very minimum, बहुत कम nutrient loss होता है, ठीक है, 99% से ज्यादा बच जाता है, actually hardly a 1% nutrient gets lost here, but here it is slow and inefficient as 90% of nutrients gets deposited as salt and is lost in the cycle. बोले नहीं रहे तो आवाज कैसे आए, राइट, बहुत तेज है बारिश. अच्छा, लेट मी टेल यू फन फैक्ट टिल दैट रेन कम्स. ये जो बिल्डिंग का जो फ्लोर है ना, फ्लोर नीचे, और उस फ्लोर के नीचे दिस इज अ रिवर कोर्स. नहीं पता है आप लोगों को? आइया भाई साहब, कुछ दिन पिप्स होटल देख रहे हैं, पिप्स होटल, पिप्स, हैव यू सीन पिप्स? ठीक बगल वाला होटल जो है, इसका पीछे वाला दीवार पिप्स का होगा. तो पिप्स का नीचे से नदी बहती है, इट इज अ रिवर कोर्स एक्चुअली. एंड 2 years अगो जब आप लोग अपने अपने गांव में थे, तो 2 साल पहले वो सामने जो नायिका खुला है, नायिका, बहुत लोग उसमें जाने प्लान कर रहे हैं, किसी को भी देख लिए तो अगले दिन क्लास में कुछ क्वेश्चन, तो नायिका पूरा बह गया. उधर तो नायिका अभी बना है. दैट एंटायर थिंग वाज फ्लोन इन 2023. यहीं पे थे हम, 2022 एक्चुअली. और पिप्स ऐसा हल्का सा ऐसे बिल्डिंग है ना पिप्स का, अभी इधर झुका हुआ है हम लोग की तरफ, जाके नीचे से देखिएगा, गो एंड वॉच इट, ऑब्जर्व इट टुडे. पिप्स बिल्डिंग इज ऐसे हल्का सा है, थोड़ा सा दिखेगा ठीक से. तो इतना बारिश होगा तो फिर 2 सेकंड बाद में भी हम लोग वहां बैंक नाले ऑटोमेटिक पहुंच जाए, पूरा अपना क्लासरूम का ब्लॉक का साथ. तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो. एनीवे, दिस वाज जस्ट अ फन फैक्ट. कोई पढ़ाई लिखाई का फायदा है? मान लीजिए बचेंगे नहीं तो एग्जाम कौन देगा, बचेंगे नहीं तो जरूरत ही नहीं है. एनीवे, इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड टू थिंग्स. क्वेश्चन क्या आएगा? सेडिमेंट्री साइकिल्स आर स्लो. सेडिमेंट मतलब डिपोजिशन. तो सेडिमेंट्री साइकिल में हम लोग जनरली फास्फोरस और सल्फर को पढ़ते हैं. तो फास्फोरस और सल्फर क्या होता है? एज ए सॉल्ट दे गेट्स डिपोजिटेड एंड दे आर लॉस्ट. वो पूरा साइकिल वो लोग नहीं कंप्लीट कर सकता है, 90% से ज्यादा सॉल्ट बन जाता है, जबकि ये काफी फास्ट होता है. एग्जांपल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, नॉट CO2, कार्बन साइकिल एक्चुअली, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल. एग्जांपल लिख लीजिए, और इसका एग्जांपल लिख लीजिए, फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल. मतलब phosphorus is found where? Phosphorus is not found in the form of gas, correct? Phosphorus is found on rock डिपोजिट में phosphorus होता है. तो फिर phosphorus को कोई लोग, मछली लोग जैसे चाट लेगा, फिर मछली लोग का रिलीज होगा, ओवरऑल घूमेगा, इसी तरीके से phosphorus घूमते रहता है. इवापोरेशन होगा तो phosphorus सॉल्ट आपको मिलेगा. तो दिस इज हाउ इट मूव्स. जबकि कार्बन का क्या कहानी है कि प्लांट्स दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, फाइन, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, दे मेक फूड. और जब प्लांट लोग खाना बनाएगा, दैट सेम फूड इज ईटन बाय हर्बीवोर्स. इट मींस, कैन वी से दैट हर्बीवोर्स व्हाइल ईटिंग दे आल्सो कंज्यूम कार्बन कंपाउंड. अरे है ना, अरे कार्बोहाइड्रेट. फिर हम लोग मरेंगे, फिर डिके होगा, फिर आवर बॉडी विल रिलीज. तो कार्बन एब्जॉर्ब हो रहा है और कार्बन रिलीज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, रिलीज हो रहा है. दिस इज साइकिल को कार्बन साइकिल बोलते हैं. वो डायग्राम आपको नोट्स मिल जाएगा, दैट इज मोर देन एनफ. लिखिए,
exam related points from nutrient cycle, right? Exam related points from nutrient cycle. लिखेंगे कार्बन, कार्बन साइकिल लिखे सबसे पहले, जस्ट राइट कार्बन साइकिल, एग्जाम रिलेटेड पॉइंट फ्रॉम कार्बन साइकिल, करेक्ट? एग्जाम रिलेटेड पॉइंट फ्रॉम कार्बन साइकिल. फर्स्ट, carbon is carbon is stored, carbon is stored in oceans, oceans, OCANS, oceans, ब्रैकेट में, therefore oceans will be the largest reservoir of carbon, therefore oceans, एग्जाम रिलेटेड पॉइंट है दोस्त, यही यही बस याद रखिएगा. हाँ, oceans are largest reservoir of carbon. ये SBI पॉइंट्स है, सुपर भयंकर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट. फाइन. सो क्वेश्चन टॉपिक वाइज होगा तो होगा न्यूट्रिएंट साइकिल से, बट क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? तो कार्बन सबसे पहले कहाँ रहता है और कार्बन को कौन लोग एब्जॉर्ब करता है? तो दिमाग से क्वेश्चन ये हटा दीजिएगा कि कार्बन इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स. फाइन, दैट इज करेक्ट माय फ्रेंड. कार्बन हर जगह है, हर जगह रिजर्वायर है कार्बन का. रिजर्वायर समझते हैं, जहां पर स्टोर होता है परमानेंटली. बट पूरे वर्ल्ड में 70% लैंड एरिया, 70% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय ओशंस, रिमेंबर और नॉट, एंड रेस्ट आर कवर्ड बाय लैंड. तो लैंड में जब प्लांट होगा तभी तो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा ना. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओशंस आर लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कार्बन. दे हैव मोर देन 50% ऑफ द टोटल कार्बन ऑफ द अर्थ. ब्रैकेट में लिख दीजिए मोर देन 50%. जस्ट राइट वन लाइन, मोर देन 50%, ब्रैकेट में मोर देन 50%. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन इज ऑल्सो लॉग्ड, LOCKED, कार्बन इज ऑल्सो लॉग्ड, कार्बन इज ऑल्सो लॉग्ड इन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, FUEL. कार्बन इज ऑल्सो लॉग्ड इन फॉसिल फ्यूल, ब्रैकेट में लाइक कोल पेट्रोल, like coal and petrol. Carbon is also logged in fossil fuels like coal and petrol. उसके बाद थर्ड पॉइंट, कार्बन मूव्स थ्रू द फूड चेन, कार्बन मूव्स, MOVES, कार्बन मूव्स थ्रू द फूड चेन and ultimately it is released, ultimately it is released by all living organisms, by all living organisms during digestion, and also by detrivores and decomposers, and also by detrivores and decomposers, also by detrivores and decomposers, correct? Also by detrivores and decomposers. Agree or not? Agree? डाइजेशन के समय में सब कोई कार्बन को रिलीज करेगा. तो कार्बन स्टोर्ड है ओशन में डिसॉल्व कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बन स्टोर्ड है प्लांट्स में, और कार्बन मूव करता है फूड चेन में, राइट? प्लांट्स आर इटन बाय हर्बीवोर्स, तो कार्बन गोज इनटू द हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स आर इटन बाय कार्निवोर्स, कार्बन गोज इनटू द कार्निवोर्स. कार्निवोर्स आर इटन बाय man, carbon goes into man, and while breaking down glucose, right, everyone releases carbon dioxide. So कार्बन जन्म हुआ, कार्बन हुआ और साइकिल में घूमता रहता है. क्या है? हाईली इफिशिएंट है, यानी 99% of the carbon which is released by the atmosphere to be used by the plant is again returned to the atmosphere. Correct? That is why we call it highly efficient and rapid, constant movement. ठीक है ना? बात समझ आ रहा है? कार्बन लॉस नहीं होता है, बहुत कम कार्बन लॉस होता है. तो गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर मोस्ट इफिशिएंट साइकिल्स.
very less loss is there. Next लिखिए नाइट्रोजन, अबाउट नाइट्रोजन, राइट? नाइट्रोजन में लिखेगी नाइट्रोजन मेक्स अप 78% of our atmosphere. Nitrogen makes up 78% of the atmosphere. Nitrogen makes up 78%. But nitrogen cannot be used in its existing form by plants or animals. Cannot be used in its existing form by plants and animals. Therefore, it must be converted into chemical forms. Therefore, it must be converted into chemical forms. उसमें लिखिए stages. Remember the stages of nitrogen conversion. देखिए नाइट्रोजन को क्या है कि नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है ना, पर वो नाइट्रोजन अनयूजेबल है, तो उस नाइट्रोजन को थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करना पड़ेगा, उसमें उसके अंदर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस करने पड़ेंगे. दैट नाइट्रोजन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल. नाउ हु डज इट? ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे डू इट. हाउ दे डू इट? दे ट्राई टू फिक्स द अनफिक्स्ड नाइट्रोजन, and this process is also known as nitrogen fixation. Is it clear? So the process of converting this free nitrogen into ammonia, right, or into usable forms is known as nitrogen fixation. और इसी नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्टेजेस को याद करना पड़ेगा. ठीक है? क्यों याद करना पड़ेगा? ये नहीं बताने कि इसके बाद क्या आएगा, क्रोनोलॉजी में आइडेंटिफाई करने के लिए, जस्ट टू आइडेंटिफाई इट इन द फॉर्म ऑफ क्रोनोलॉजी. ठीक है? राइट द फर्स्ट स्टेज लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखेगी स्टेजेस में, लिखेगी द फर्स्ट स्टेज ऑफ फिक्सेशन, the first stage of fixation is known as नहीं, the first stage of fixation is done by biological as well as atmospheric, and industrial methods. बायोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिकल एंड इंडस्ट्रियल. ठीक, तीन तरीके से नाइट्रोजन सबसे पहले N2 से अमोनिया में कन्वर्ट होता है. ठीक है? द फर्स्ट स्टेज इज N2 into ammonia. N2 is present in the atmosphere, but that cannot be used. So in order to make it usable, the first stage involves converting it into ammonia. It can be done by three ways. Correct? Microorganism like rhizobium can do it. Second, lightning will break N2 into ammonia. And third is the Haber-Bosch model, which is used in industries. Haber, Haber-Bosch. ये तीनों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा. तीन तरीके हैं नाइट्रोजन को तोड़ने के. और क्यों इंडस्ट्रियल मेथड बनाया गया है? क्योंकि इसके ऊपर कितना रिलाई कीजिएगा आप, ये सुनो. तो इसीलिए आदमी लोगों ने इसको नाइट्रोजन को यूज करने के लिए इंडस्ट्रियल था. जैसे आप नाइट्रोजन एयर भराने जाते हैं, नाइट्रोजन गैस गाड़ी में, अरे नहीं जानते होंगे. जब लंबा चलना है ना, when you have to drive for a longer period of time, and this is a summer season or hot season, then in that case people they generally prefer
इंसर्टिंग नाइट्रोजन एयर इनटू देयर कार ट्यूब्स, कार और स्कूटी में, ठीक है, नाइट्रोजन का हवा भराते हैं क्योंकि नाइट्रोजन इज कोल्डर, तो इट कीप द एयर, इट कीप द टायर कूलर, सो दैट टायर बर्स्ट वगैरह का चांसेस कम हो जाता है। तो अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, तो लिखिए सबसे पहला बायोलॉजिकल, राइट द बस बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में लिखिए कि राइजोबियम, राइजोबियम कॉमा एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, राइजोबियम एजोटोबैक्टर एंड एनाबेना बैक्टीरियाज, राइजोबियम चूचा नहीं करेगा कोई, राइजोबियम एजोटोबैक्टर, AZOTOBACTOR एंड एनाबेना, ये बस आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है एग्जाम में, ठीक, नो नीड टू मेमोराइज इट, जस्ट मेक इट फॉर आइडेंटिफिकेशन इन एग्जाम हॉल, ओके। राइजोबियम एजोटोबैक्टर एंड एनाबेना are present in the roots of certain plants, are present in the root, ROOT, are present in the roots of certain plant, leguminous plant, especially leguminous plant are present in root of certain plants and they convert it actually, ये तीनों बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लोग रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, लेग्यूम्स के, लेग्यूमिनस क्रॉप्स के रूट्स में ये लोग तीनों पाए जाते हैं, तो ये बैक्टीरियल प्रोसेस है, फाइन बस। फिर लिखिए एटमॉस्फेरिक में वाया लाइटनिंग, वाया लाइटनिंग, lightning breaks into, lightning LIGHTING, lightning breaks into, and third industrial, इसमें लिखिए via Haber-Bosch model, via Haber-Bosch model, fertilizer companies, देखिए via Haber-Bosch, HABERBOSCH, fertilizer companies, Haber-Bosch fertilizer company uses this, fertilizer company uses this to make fertilizer, fertilizer companies uses this to make chemical fertilizers, done। second stage, right, the second stage, ये तो हो गया, फर्स्ट स्टेज इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया निकालते हैं सबसे पहले, सो दिस इज स्टेज 1, नाउ कम टू स्टेज 2, अमोनिया निकल गया, अब आते हैं स्टेज 2 पे, स्टेज 2 क्या है, निट्रिफिकेशन, दिस इज स्टेज 2, निट्रिफिकेशन, डन, NITRI, निट्रिफिकेशन, स्टेज 2, इसमें प्लीज फोकस एवरीवन, निट्रिफिकेशन, इसमें लिखेगी अमोनिया is converted into nitrite and nitrite is converted into nitrate, ammonia is converted into nitrite and nitrite is converted into nitrate, next third stage, assimilation, 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 what is the meaning of assimilate, please google everyone, first google कीजिए assimilate का meaning, ASSIMILATE, just google the meaning of assimilate, what is the meaning, English meaning of assimilate, क्या है, to become,
to allow someone to become a part of you, ना, to become a part of a union, assimilate करो, मिल लो, मिला जुलो, ना, मिलजुल के रहना, assimilation, right? Assimilation is मिलजुल के रहना. So what happens in assimilation? अब ये जो नाइट्रेट बना है, प्लांट्स यूज दिस नाइट्रेट्स एंड प्लांट कन्वर्ट दिस नाइट्रेट्स इनटू अमीनो एसिड्स. लिखिए एसिमिलेशन में, लिखिए कि प्लांट्स, राइट, इन एसिमिलेशन लिखिए कि प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स एब्जॉर्ब nitrate from the soil, plant absorb nitrate from the soil and converts it into amino acids and proteins, amino acids and proteins into proteins. Full stop. Animals consume plants and they get their nitrogen dosage. And they get their nitrogen dosage. They get their nitrogen dosage. अब आप प्रोटीन खा रहे हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है आप बोलते हैं, ठीक है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, एनिमल बेस्ड प्रोटीन, वी से दिस और नॉट? तो जिम जाने वाले विद्यार्थी लोग क्या है, जो पाउडर जो खा रहे हैं ना, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक जिसको बोलते हैं हम लोग, तो व्हाट यू गेट नाइट्रोजन, यू गेट अमीनो एसिड्स which are important. How do you get it? How that has been sourced? That has been sourced via the same process of, first it is fixation by biological ways, then via fixation it converts into ammonia nitrite into nitrate. इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. नाउ दिस नाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट सॉइल से प्लांट लोग लेता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और यही अमीनो एसिड हम लोग कंज्यूम करते हैं इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली. So we get our oxygen demands, we get our nitrogen demands, and once we, मान लीजिए प्रोटीन शेक पीजिएगा, इतना सारा जिम वम जाइएगा, तो टॉयलेट लगेगा, तो टॉयलेट कीजिएगा, एक्सक्रीशन, एनिमल्स दे एक्सक्रीट, ह्यूमंस दे एक्सक्रीट, एंड वाया दिस एक्सक्रीशन अगेन वापस से उसको वापस अमोनिया की तरफ कन्वर्ट किया जाता है, रिलीज अमोनिया. वी कॉल इट अमोनियाफिकेशन is the next stage. लिखिए नेक्स्ट स्टेज अमोनियाफिकेशन. क्यों हंसी आ रहा है? जिम वाला लोग नाइट्रोजन ले लिया, जो जिम नहीं गया वो क्या करेगा? रेड मीट खाइए, ईट रेड मीट इफ यू कैन डोंट वांट टू गो टू द क्या बोलते हैं, प्रोटीन वाले. गरीब हैं आप, गरीब हैं तो मीट मछली खाइए, तब गरीबी भूल जाइए. इस समय गरीब नहीं है, जीव बहुत बड़ा है, और कोई बात नहीं, बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है. तो अब अपने आप को ही हम बोल रहे हैं थोड़ा, बट एज अ मोटिवेशन. नेक्स्ट स्टेज फोर्थ, लिखिए अमोनियाफिकेशन, राइट, द फोर्थ स्टेज. अमोनियाफिकेशन. अब पूरा ए मत लिख दीजिएगा, गांवलिया हो जाएगा. अमोनिफिकेशन उसको लिखते हैं, वी कॉल इट अमोनियाफिकेशन और अमोनिफिकेशन. इसमें लिखिए अमोनिफिकेशन में लिखिए कि when plants and animals they excrete waste, when plants and animals excrete waste, when plants and animals excrete waste, or they die, the decomposers like bacteria, the decomposers like
हो जाएगा, छोड़ी जरूरत नहीं. The decomposers like bacteria converts the organic nitrogen, converts the organic nitrogen stored in the detritus to ammonia. Stored in the detritus to ammonia. समझ रहे हैं बात? मर गए, एक्सक्रीट किए, तो अमोनिया अपना बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, और बैक्टीरिया लोग उसके, याद है डिकम्पोजिशन का साइकिल. व्हाई आई हैव नॉट रिटन डेट्रीवोर्स? बिकॉज दे आर नॉट डेट्रीवोर्स, दे आर डिकम्पोजर्स. डेट्रीवोर्स जमीन के ऊपर, और जमीन का नीचे जब जाता है डेड मैटर, तो डिकम्पोजर्स दे कम इनटू द पिक्चर. ठीक है, तो दे रिलीज इट इनटू अमोनिया. ना लास्ट स्टेज, फिफ्थ, डीनाइट्रिफिकेशन. डीनिट्रिफिकेशन में लिखिए कि the conversion of soil nitrate back into gaseous nitrogen back into the gaseous nitrogen by bacteria's under anaerobic conditions, under waterlogged conditions, thus completing the cycle is known as denitrification. ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिए थोड़ा. स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. It starts with nitrogen fixation where the free nitrogen N2 is converted into ammonia, right? Then this ammonia is further, what happens to this? क्या हो रहा है? Ammonia goes second stage. What is the second stage? First stage is fixation. Second stage is nitrification. This ammonia into nitrite, ITE, and this nitrite into nitrate. Now this nitrate is now available for the plant. The third stage is assimilation, माने मिलना जुलना एक साथ. तो प्लांट लोग मिलके ले लिया नाइट्रोजन. ठीक है, और यही प्लांट लोग का नाइट्रोजन एमिनो एसिड प्रोटीन का रूप लेके जानवर्स में फैल जाता है. ठीक. Now after this stage of nitrification, we arrive at the stage of assimilation. After assimilation, we excrete and ammonification takes place. We die, ammonification takes place, and after ammonification, this NH3 is again converted into N2. Correct? Where it is converted? Anaerobic condition. What is anaerobic condition? More oxygen, less oxygen. Huh? Everybody, less oxygen. Where it is converted? पानी जमा हुआ area, waterlogged areas. Correct? And this process is known as denitrification. बात समझ में आ रहा है? ये 5 स्टेज है. याद करने का कोई तरीका? फिक्सेशन. चलिए, तो पहला वाला तो है ही फिक्स है, हटाइए. NNAAD ना, नाद से क्या होगा? नाद, नदी. ठीक है, नदी. सुनिए, गुड. What are the stages? Everybody focus here. मेरे हिसाब से the strategy is to remember it, नदी.
व्हाट इज नदी? नदी मतलब वाटर लॉक्ड एरिया। नदी मतलब अरे पानी लॉक्ड एरिया हो गया। एग्जाम में आइडेंटिफाई ना करना है जी, थोड़ी लिखना है जाकर पीटी में वर्ड का स्पेलिंग। ऑप्शंस विल बी देयर, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, स्टेजेस आर देयर, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, नो नीड टू मेमोराइज दिस एक्चुअली। ठीक है, तो याद हो गया नदी से। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करना है तो नाइट्रोजन फिक्सन तो याद करने की जरूरत नहीं है। फिर नदी, अब एन से क्या ही होता होगा, नाइट्रिफिकेशन, ए से एसिमिलेशन और अमोनियाफिकेशन। अरे भाई निट्रिफिकेशन है ना, निट्रिफिकेशन के बाद एसिमिलेशन, करेक्ट। तो रुकिए, एक और ए है तो अभी मजा नहीं आ रहा, दूसरा कुछ करना पड़ेगा। नादी ना ना ना, ना डीनाइट्रिफिकेशन ना, हो जाएगा, खुद से याद कीजिए, फाइंड इट योरसेल्फ, मेक इट योरसेल्फ। मेरे हिसाब से दिस इज N2 A2 D, NAD ना, NAD। N2 is nitrogen fixation and nitrification, A2 is assimilation and ammoniafication, D is denitrification, something। ठीक, यहाँ लिखे कि नहीं कभी? यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेगा ना तो बेचैनी होगा, डर लग जाएगा, पसीना हो जाएगा यहाँ। ज्यादा नहीं बोलेंगे, समझ में आ गया? मेरा नाम मत ले लीजिएगा दोस्त बाद में जाके। हाँ, सी, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। एक बार पता चला कि अभी एपीसीएस का मेंस होने वाला था तो पिछले साल मार्च में, तो अभी हम कुछ कुछ ट्रिक बताया था कि याद नहीं हो तो लिख लेने के लिए, क्लास में आदमी मजाक कर देता है, हो जाएगा, नहीं याद होगा तो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर मिलता है, 10 मिनट मिल रहा है तो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम एंड क्वेश्चन में लिख सकते हैं, मजाक में, दिस प्योरली फन, एवरीवन लाफ, बट एक दो लोग सीरियसली ले लिया। तो पता चला मुझे को, बाद में वो लोग बताया, एक्चुअली आई गॉट टू नो इट आफ्टर अ ईयर। वन ऑफ द स्टूडेंट, जैसे ही क्वेश्चन मिला, शी स्टार्टेड मेकिंग सम रफ, जल्दी जल्दी, कि हम तानवीर सर बताया था टाइम बचाने के लिए 5 मिनट में कुछ कुछ ऐसे का रफ बना सकते हो ना बैठ के, शी स्टार्टेड डूइंग इट। सो द एग्जामिनेशन कंट्रोलर एपीसीएस ऑफिस में बैठ के आप ये कर रहे हैं, तो शी कलेक्टेड, मतलब स्नैच्ड हर कॉपी एंड शी आस्क्ड कि ये कौन बोला है करने के लिए। तो स्टूडेंट लोग जो क्लासरूम में था, दे इन्फॉर्म मी दैट शी टुक योर नेम एक्चुअली, कि अमृतांशु सर बोले थे। अब अच्छा हुआ कि मैडम को अमृतांशु वर्ड नहीं पता चल पाया जल्दी, लगा कि कुछ थ्योरी व्योरी का नाम होगा, तो शी कुड नॉट मेक इट आउट, बच गया। बट यही काम मत कीजिएगा, हम आपको बोले याद बात करने के लिए, दिन भर इसमें लिख के रखिए, याद हो जाएगा बोल के। ओके, ठीक है, थर्ड लिखिए। अब सुनिए दोस्त, ये जो प्रोसेस है डीनिट्रिफिकेशन, यहाँ पे हमने क्या कराया है, वाटर लॉक्ड एरिया। अगर डीनिट्रिफिकेशन नहीं होगा, पुश, इफ डीनिट्रिफिकेशन विल नॉट टेक प्लेस, विल दिस साइकिल बी कंप्लीटेड? क्योंकि NH3 ही तो हो गया ना, फिर वापस नाइट्रोजन में तो नहीं गया ना जी। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको वापस नाइट्रोजन के लिए डीनिट्रिफिकेशन होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? और डीनिट्रिफिकेशन होने के लिए कौन सा इलाका चाहिए? वाटर लॉग, करेक्ट। If more and more urbanization will take place, everybody focus. If more and more urbanization will take place, will there be any waterlogged area left? No, correct. And waterlogged area, अब बायोडाइवर्सिटी में पढ़ाएंगे आपको, एक टर्म यूज किया जाता है वाटरलॉग्ड एरिया के लिए, उस टर्म को कहते हैं, डोंट राइट, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स इसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी में वेटलैंड। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड्स आर देयर, इंडिया में, अरुणाचल में, हर जगह वेटलैंड। वेटलैंड क्या? जहां पे 6 मीटर पे पानी आ जाए, 6 फीट पे पानी आ जाए, पानी सरफेस में ही रहे, स्वाम्पी एरिया, मडी एरिया, where water is easily available, when it is a land which is wet. Are you getting my point? So wetlands are very very important ecological system. Wetlands are very important ecosystems which are important for many things, but one of the most important thing is denitrification. If denitrification will not take place,
If denitrification will not take place, it will lead to nitrogen pollution. Correct? It will lead to ammonia pollution actually. So this is the most important function of a wetland, that it engages into the function of denitrification. Now this is a question which is supposed to be asked in your mains examination actually. Stages of nitrogen fixation. तो नाइट्रोजन साइकिल का क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछा गया था. इट वाज जस्ट एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन ऑल दीस स्टेजेस. मेंस में पढ़ेंगे डिटेल में, और अभी के लिए आपको इतना हम ऐसा प्राइमर दे दिए कि दिस इज अ फाउंडेशन क्लासेस है प्रीलिम्स का. तो दिस इज जस्ट अ फाउंडेशन क्लासेस, नॉट अ डिटेल्ड मेंस क्लासेस जिसमें हम लोग ये सब देखेंगे. थिंग्स विल टेक टाइम, राइट? गुड थिंग्स दे टेक टाइम टू कम. स्लोली ग्रेजुअली बिल्ड इट. ओके, ठीक है. लिखिए फॉस्फोरस साइकिल. ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फॉस्फोरस साइकिल. एक क्लास अब हम लोग पीछे हो गए हैं दोस्त. हाँ, अब संडे को क्लास करना पड़ेगा. बी रेडी फॉर संडे. ओके, दिस संडे ओनली, कसम. इसके बाद कोई संडे आप लोग का क्लास नहीं होगा. ठीक है. सी व्हाट इज द प्रॉब्लम इज कि अभी लेट हो गया ना आज. इसमें अभी बायोडाइवर्सिटी करना था. अब क्यों लेट हो गया? क्योंकि पढ़ाने मन हो गया थोड़ा सा, कुछ चीजों को खींच के. तो दिस हैज टू बी कंपनसेटेड, राइट? वेर इट विल बी कंपनसेटेड? संडे. बिकॉज शेड्यूल विल गेट, एक एक दिन बढ़ते जाएगा ना दोस्त आगे. नहीं समझे बात? और नया नया जोश है. अभी संडे नहीं तो छुट्टी तो दी है ना यार. अभी तो ट्यूसडे को छुट्टी तो दी है. ठीक है. तो बी रेडी फॉर संडे. इफ वी कवर गुड ग्राउंड्स, वी मे नॉट बी हैविंग क्लासेस आल्सो, बट इन ऑल लाइकलीहुड दिस संडे प्लीज. कसम, दोबारा कोई संडे नहीं होगा. my word, take my word for it. Okay, let us take this Sunday so that. और दूसरी बात, संडे को आप सबको समोसा भी खिलाएंगे. ठीक ठीक है. तब समोसा पेप्सी नहीं, तो समोसा नहीं खाएंगे तो क्या खाएगा? समोसा पेप्सी चलेगा ना एज अ ब्राइड टू कम ऑन संडे. करेक्ट? नहीं चाहिए तो बोलिए भाई. तो ठीक है, घर से 20 रुपीज लेते आएगा. मेरा काम होगा अरेंज कर देना, आपका काम खाइए. तो संडे को देयर विल बी क्लास एंड आई विल बी गिविंग यू समोसास एंड पेप्सी आल्सो, राइट? मिड ब्रेक में देंगे, पूरा पेट भरेंगे और खिलाएंगे अच्छे से. चिंता मत करिए. ठीक है. लेट अस हैव इट अ क्लास ऑन संडे. लेट अस रीड मोर. फाइन. मैपिंग ओपिंग किया जाए थोड़ा सा, क्योंकि सी टाइम इज लेस. वी कैन नॉट, आई मीन आई कैन नॉट हैव, हम, मेरा टारगेट वाज देयर टू कंप्लीट द कोर्स टिल 20th, पर 20th को नहीं करके 21st को लेट अस कीप अ टारगेट एंड लेट अस कीप वन मोर डे एक्स्ट्रा जस्ट टू रीड इट मोर. फाइन. पढ़ ही रहे हैं, नया जोश है तो कुछ बड़ा बात नहीं है संडे को. एनीवे, लिखिए फॉस्फोरस साइकिल, राइट? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस साइकिल लिखिएगी. फॉस्फोरस इज क्रिटिकल. फॉस्फोरस इज क्रिटिकल फॉर formation of DNA, for formation of DNA, comma cell membranes. आराम से गिरिए मत. cell membranes and ATP. ATP छोड़िए. हाँ, phosphorus is important for formation of DNA. DNA understand? बॉडी जीन में डीएनए नहीं होता, डीएनए आरएनए. डीएनए, एटीपी एनर्जी करेंसी को बोलते हैं एटीपी. करेक्ट? एटीपी कॉमा सेल मेम्ब्रेन. सेल कॉमा एटीपी कॉमा सेल मेम्ब्रेन, फुल स्टॉप. एंड इन एनिमल्स phosphorus is an important component of bones and teeth. Phosphorus is an important component of bones and teeth. सेकेंड पॉइंट फॉस्फोरस का. तो सबसे पहले यूजेज जानेंगे. थोड़ा सा जनरल साइंस भी आपको हमने पढ़ाया है. ठीक है. फॉस्फोरस का इस्तेमाल क्यों जरूरी है. दूसरा कि इसमें एटमॉस्फेयर का कोई भी रोल नहीं होता है. फॉस्फोरस जहां पे स्टोर्ड है और फॉस्फोरस उस स्टोरेज से हमारे बॉडी में पहुंचने तक, ठीक, फॉस्फोरस प्लांट, फिर प्लांट से एनिमल के बॉडी में पहुंचने तक एटमॉस्फेयर का रोल नहीं है. कार्बन और नाइट्रोजन में क्या है? एटमॉस्फेयर का रोल है. करेक्ट? बट फॉस्फोरस में एटमॉस्फेयर का रोल है ही नहीं दोस्तों.
Because phosphorus is not a gaseous cycle. Phosphorus is a sedimentary cycle, deposit based cycle. तो यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट स्टेटमेंट में आ सकता है कि atmosphere plays, consider the following point about phosphorus cycle, fine, and they will give you a statement, atmosphere plays the most important role. So this statement is a wrong statement. Are you getting my point? Second point लिखिए, atmosphere plays no role. Atmosphere plays no role. Atmosphere plays no role as there are no gaseous phosphorus compound, as there are no gaseous phosphorus compound, as there are no gaseous phosphorus compound. किसी भी प्रकार का gaseous phosphorus compound नहीं होता है. Full stop. Next, phosphorus is mainly contained. नहीं, phosphorus is mainly stored. Phosphorus is mainly stored in rocks, in sedimentary rocks. Phosphorus is mainly stored in sedimentary rocks and it gets washed, WASHED, it gets washed, it gets washed from the soil, it gets washed from the soil to the rivers, and finally to the oceans, and finally to the oceans. Full stop. In the oceans, it gets deposited at the bottom floor. It gets deposited at the bottom. In the ocean, it gets deposited at the bottom. It gets deposited at the bottom, and it forms new sedimentary layers. It forms new sedimentary layers. LAYERS. New sedimentary layers. ठीक. Third point. While it is present in the soil, while it is phosphorus, while it is present in the soil, plants, they absorb. Plants absorb phosphorus. Plant absorb phosphorus, and they convert it into organic phosphorus compound. Like nucleic acid. Full stop. Animals eat plants and get their required phosphorus. ठीक. नाउ सी, तो एक्चुअली ये साइकिल है नहीं, क्योंकि रॉक से चला गया कहाँ, पानी में, पानी से चला गया ओशंस में, और ओशंस में रह गया, वापस तो नहीं आया ना दोस्त, क्योंकि गैसियस नहीं है ना जी. तो एक बार आप सॉइल, मान लीजिए आपका सॉल्ट है, किसी पत्थर के ऊपर सॉल्ट है, बारिश हुआ, वो फॉस्फोरस नाली, नदी, नाला होते 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 लास्ट में समुद्र में गया. अब जैसे
This will go into Subansiri. All this rainwater will go into Subansiri, Pare, or Kameng River. Yes or no? Kameng will eventually go into Brahmaputra. Brahmaputra will eventually drain out of the Bay of Bengal. So ultimately, आप चले गए उसमें. So once you go into the ocean, you drop down at the bottom of the ocean, and once you drop down at the bottom, you create new sedimentary layers. So actually, you left this place, but actually never came back. Why? Because there is no gaseous phosphoric compound. तो कहने को साइकिल है, बट 99% से ज्यादा लॉस हो चुका है. लॉस इन द सेंस वन वे है खाली. आप समझ रहे बात? बिकॉज फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन रॉक्स. फिर बहुत सालों के बाद, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, जब वापस से अर्थक्वेक आएगा, पृथ्वी उठेगी ना, न्यू प्लेट टेक्टोनिक्स विल टेक प्लेस. देन अगेन दिस जो फॉस्फोरस समुद्र का लेयर में जम चुका है, दे विल अगेन क्रिएट माउंटेन्स. आर यू गेटिंग इट? सो दिस साइकिल विल बी कंप्लीटेड देन. तो कहने को साइकिल है, बट इंस्टेंट नहीं है. आप समझ रहे हैं? स्लो नहीं है. स्लो क्यों नहीं है? क्योंकि गैस नहीं, एटमॉस्फेयर का जीरो रोल, इसलिए सेडिमेंट्री है. आर गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? सल्फर साइकिल. लास्ट सल्फर साइकिल इसमें लिख दीजिए. सल्फर इज इंपॉर्टेंट फॉर protein structure in the body. Second point, sulfur cycle is unique. Second point, sulfur cycle is unique because it has both sedimentary and minor gaseous phases. Therefore, phosphorus and sulfur cycle are same. Therefore, phosphorus and sulfur cycle are same, but dip length. But dip length, DIPLENT, are same, but dip length. How? Phosphorus is purely sedimentary, right? But sulfur is slightly gaseous. पूछे क्या है? Have you heard about phosphorus gas? नहीं, कैसे सुने? होता ही नहीं, कैसे सुनिएगा? जब होता ही नहीं तो कैसे सुनिएगा? हाँ, माथा हिला रहा है. फॉस्फोरस अगर ऑक्सीजन, भाई फॉस्फोरस अगर एटमॉस्फेयर में गैस बन जाएगा तो हमारा तो पहला लाइन गलत हो गया ना. फॉस्फोरस इज नॉट अ गैसियस कंपाउंड, करेक्ट? तो हैव यू हर्ड अबाउट फॉस्फोरस डाइऑक्साइड? नेवर एवर, कभी सुनी? होता ही नहीं, सुनिए कैसे. नेक्स्ट, हैव यू हर्ड अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड? इट हैज अ माइनर गैसियस फेज. हैव यू हर्ड अबाउट जिप्सम? क्या होता है जिप्सम? सुना है? बताइए तो, क्या होता है जिप्सम? हाँ? What are gypsum and pyrite? They are sulfur compounds. And what is sulfur dioxide? Gaseous compound. तो ये थोड़ा सा सेम बट डिफरेंट एक्चुअली. ये रिमेंबर इट माय फ्रेंड. एक्सट्रीम स्टेटमेंट एग्जाम में देगा कि बोथ फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल हैज एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं. गलत स्टेटमेंट है. ऑल्दो बहुत कम है रोल एटमॉस्फेयर का, लेकिन सल्फर में है जो फॉस्फोरस में नहीं है बिल्कुल. So these are some points which will be useful in your examination if statement based questions are asked. ठीक है? अरे है ना? ये इतना ही साइंस जानना है, इतना ही साइंस हमको भी आता है, इतना ही साइंस हम आपको बताएंगे. तो यही एग्जाम में जरूरी है. कुछ साइंटिस्ट का एग्जाम है ना दे रहे हैं जी, जनरल स्टडीज का एग्जाम दे रहे हैं. So it do not require subject specialization. This is what it is required. Okay? Yes or no? What do you think is my academic background?
अभी इतना 3-4 दिन क्लास में इतना तो हमको जज किए होंगे ना यार कि थोड़ा सा टेक्निकल है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होगा, आर्ट्स का ही बैकग्राउंड होगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? व्हाट वुड बी माय एकेडमिक बैकग्राउंड? हाँ, आर्ट्स. आर्ट्स, engineering. Okay, good, fair enough. Which type of engineering? Which engineering? If engineering, civil. How many of you think that I may be an engineer? Possibly. Please raise hands. Okay, 3, 4, 5, 6. How many of you are sure that 100% engineering तो नहीं होगा सर का? Very good. How many of you are sure that I have a bachelor degree in science? Not engineering, but bachelor in science. No one? Okay, 1, 2, 3, 4. How many of you think that I have a bachelor in normal art subject? यही खासियत. I have done my graduation, post graduation in political science. Sorry, political science. बिहार में एक टॉपर हुई 10th क्लास के बाद. देयर वाज अ टॉपर इन बिहार. शी वाज अ टॉपर ऑफ क्लास 12. 5-6 साल हो गया इस बात को. ये इनफैक्ट 7-8 इयर्स हो गया. तो इंटरव्यू हुआ. आप टॉपर हैं तो इंटरव्यू होगा ना जी. इंटरव्यू है, न्यूज वाला लोग आया, टीवी चैनल. आप क्या पढ़ाई किए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट था आपका? तो कह रही हैं कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंग्लिश, प्रोडिगल साइंस. तो पूछा कि प्रोडिगल साइंस, प्रोडिगल साइंस में क्या पढ़ते हैं? तो कह रही खाना बनाना पड़ते हैं. इंक्वायरी हो गया. इंक्वायरी हुआ. रैंक 1 बिहार बोर्ड. पता चला, इंक्वायरी में पता चला कि उनके पिताजी ने लगभग 5 लाख रुपए देके रैंक खरीदा है. फिर उनका अलग से इंटरव्यू हुआ, ओपन कैमरा इंटरव्यू. बोर्ड ऑफिस. क्वेश्चन मार्क हो गया ना. पूछ रहा प्रोडिगल साइंस, तो खाना बनाना सीखते. तो पहले प्रोडिगल साइंस बोलने में ही हो गया, फिर खाना बनाना उसको बना. इंक्वायरी हुआ भाई साहब. वेरी फेमस केस. वो होम आंसर रूबी राय का केस है. रूबी राय रैंक 1. तो वहीं से प्रोडिगल साइंस आया. आई हैव डन माय मास्टर्स इन प्रोडिगल साइंस. बट पढ़ते पढ़ते ज्यादा आदमी जान गए ये सब चीज. कोई दिक्कत नहीं. इतना अगर हम एडजस्ट कर सकते हैं अपना माइंड में, तो आप लोगों के लिए एग्जाम है भाई. एकदम एडजस्ट कीजिए इसको. मेक इट एडजस्ट इन योर माइंड. ओके. सेकंड पॉइंट ऑफ सल्फर. थर्ड पॉइंट ऑफ सल्फर. नेक्स्ट लिखेगी. सल्फर is stored in sedimentary rocks of minerals. Sulfur is stored in sedimentary rocks and minerals such as gypsum and pyrite, whereas the atmosphere also contains certain gaseous sulfur compound such as sulfur dioxide and hydrogen sulfide. Full stop. Plants absorb sulfur from the soil, and similarly animals gets it as they are in the food chain. Animal gets it as they are in the food chain. Animal gets it as, समझ रहे हैं ना, कॉमन सेंस है. प्लांट को मिल रहा है तो एनिमल को मिलेगा. Animal gets it as they are in the food chain. Full stop. Last line. Once the organism dies, the decomposers reduce the organic sulfur into hydrogen sulfide gas,
विच स्मेल्स लाइक, कैसा महकता है? जानवर मरने के बाद महक आता है थोड़ा दिन बाद? अरे सुनो, वो नहीं महकाता आप लोग को? उल्टी उल्टी ऐसा नहीं होता है? जानवर मान लीजिए रोड पे मरा हुआ है तो महकता है कि नहीं कुछ? या होलंगी तरफ जब जाते हैं, मान लीजिए गरीब है तो साइकिल से जाते होंगे, स्कूटी से जाते होंगे, तो एक कचरा वाले इलाका आता है, देखें कूड़ा कूड़ा कचरा रहता है पूरा इटानगर का, महकता है, कितना मजा आता है। व्हाट इज दैट स्मेल? दैट स्मेल्स लाइक rotten egg. What is that gas? Hydrogen sulfide, right? Hydrogen sulfide, it smells like rotten egg. तो वही है कहानी, यही है दुनिया के नियम। पढ़ते हैं हम लोग सब कुछ, जानते नहीं है कि क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा कम ओकरा हो जाना है हर 2.5 घंटे बाद, ठीक? स्मार्टली बात कर, बहुत महक रहा है, बस मार रहा है ना, it's actually it's an hydrogen sulfide gas primarily, which is actually it is because of the sulfate compounds which are being broken down by the decomposers. So yeah, that is most likely this. बस देखिए, उसके बाद देखिए दोस्तों के नजर में आपके प्रति इज्जत, यही यही इतना ही ऑब्जेक्टिव ही है दोस्त। दिस इज हाउ यू बिकम, एटलीस्ट नॉट इवन बिकम, तो एटलीस्ट यू कैन शो ऑफ दैट यू आर लर्निंग समथिंग, ठीक है? तो आज का क्लास गेल गया एक्चुअली, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हम लोग शुरू नहीं कर पाए, बट नेवरदलेस अपना क्लास है, अपना संडे है। नेक्स्ट विल मीट टुमारो एट 7। डन? बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द मैंडेटरी चेकलिस्ट? माय फ्रेंड एवरीबॉडी फोकस। एटलस तो होना ही है सबसे पहले एटलस चेक होगा आपका गेट पे। दूसरा प्रिंटेड नोट्स जो आपको दिया गया है, ये 2 चीज और अपना नोट्स और एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के साथ मोबाइल लेके आना है, ये तीनों चीज रहना है, तब जाके कल क्लास आना है, अगर नहीं है तो क्लास नहीं आना है किसी को, ठीक? वी स्टार्ट विद बायोडाइवर्सिटी टुमारो, एटलस, प्रिंटेड नोट्स, मोबाइल विथ वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, ठीक? सी यू टुमारो 7 AM। थैंक यू सो मच।